आप सबका स्वागत है। सेमिनार कम वेबिनार ऑन अपॉर्चुनिटीज फॉर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस इन गुजरात अंडर पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस पीएमएफएमई स्कीम पे आज हमारे साथ ये एक्चुअली हमने सेमिनार कम वेबिनार इसलिए रखा है कि कोविड गाइडलाइंस के चलते 50 लोगों से ज्यादा हम बुला नहीं सकते थे। सो फिजिकल एज वेल एज वेबिनार से भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जिससे काफी लोग हमसे जुड़ पाए। इसमें सपोर्ट दिस इवेंट इज सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात. SPMU is Abhyuday Group and organized by Knowledge Chamber of Commerce and Industry of India. आज हमारे साथ जो डिग्निटरीज जुड़े हैं, श्री भरत पटेल, ऑनररी सेक्रेटरी जनरल नॉलेज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. चीफ गेस्ट महेश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में. अभी हमारे साथ है शैलेश मकवाना जी, गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के. श्री धवल रावल, CMD अभ्युदय ग्रुप, जो SPMU है गुजरात स्टेट की. और हंसराज गजेरा साहब, जो लघु उद्योग भारती के प्रेसिडेंट है, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे. मैं पहले स्टेज पे आमंत्रित करता हूं इसका रौनक and please come. देवांग शाह, मिस्टर रौनक चतवानी सर हमारे साथ आज न्यूली ज्वाइन किए हैं SPMU अभ्युदय से. Now I request Bharat sir to please welcome for welcome address. Good morning and namaskar to all of you. It is a great pleasure to have Shri Mahesh Singh, who is shortly joining with us, who is an IFS Managing Director of the Gujarat Agro Industrial Corporation Limited, Government of Gujarat. For his, especially it will be wonderful that he's been sparing his time for this valuable support and this particular event to be taken forward. And I think without Gujarat Agro, this would not have been possible. I also welcome Shri Shailesh Bhai Makwana, who is again from Gujarat Agro Industries, and I think Mr. Vikrant Rana is joining online with us, who's from the Ministry of Food Processing Industry, Government of India, who's handling this particular program of PMFMF, and the entire team of Gujarat Agro has been a wonderful, support as far as this event is concerned. And I think this particular program, which has been organized by KCCI, is going to put a lot of image in the entire industry of food processing, because the opportunities which are there in the food processing across Gujarat and across the country, unless and until they're not streamlined and brought into the right structured manner, I think the progress does not happen. And primarily if we look at the GDP of the country, the MSME and the small MSME is contributing to a large extent. So I think this cluster development of this and formalizing of this micro food processing and enterprises is going to create a huge impact into this. So I think we would expect a lot of deliberation happening in this conference and seminar, and a lot of outcome is going to help the entire industry as such. So I welcome once again all of you and the delegates who have joined and those who are going to join in a short while from us. And may this great seminar be a great success for all of us. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर. भरत सर आज हमारे साथ गोवा से जुड़े हैं. कल हमारा एक प्रोग्राम था गोवा में. चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा इज देयर. सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम. नाउ आई रिक्वेस्ट श्री शैलेश मकवाना साहब टू से फ्यू वर्ड्स फ्रॉम गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज, और ये गांधीनगर से हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं. शैलेश जी. Good morning, everyone. Welcome to all. On behalf of Government of Gujarat and Gujarat Agro Industries Corporation Limited, I welcome to all dignitaries and speakers to who are joining the current session and upcoming sessions and participate in webinar cum seminar. आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है, और ये एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में पूरे भारत में कई ऐसे लोग हैं जो अभी अनऑर्गेनाइज है। लास्ट ईयर रिसेंटली आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जिसको ये सभी इंडस्ट्रीज को वो कोविड की वजह से इम्पेक्ट हुआ था। इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी शामिल थी। तो माननीय हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर आत्मनिर्भर भारत की स्कीम के तहत ये पीएमएफएमई स्कीम को लॉन्च किया था, जिनका मेन उद्देश्य यही था कि जो एग्रो और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो अनऑर्गेनाइज्ड लोग हैं तो उनको फॉर्मलाइज करके इस स्कीम का मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ का प्रोविजन किया हुआ है 5 ईयर्स के लिए कि जिनका सबको ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर उनको ऑर्गेनाइज करके उनको क्रेडिट लिंक की फैसिलिटी मिले और इनको ज्यादा से ज्यादा वो उनको ये स्कीम का लाभ मिले। रिसेंटली गुजरात एग्रो ने एक स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को आइडेंटिफाई करके अपॉइंट किया हुआ है, जिसका मेन उद्देश्य इस स्कीम का मेन उद्देश्य है इनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट और क्रेडिट लिंक की फैसिलिटी मिले। तो इसके लिए गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए अभ्युदय को यहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है। ये स्कीम का मैक्सिमम बेनिफिट के लिए सब डिस्ट्रिक्ट में ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जो भी है बेनिफिशियरी एंटरप्रेन्योर है तो उनको ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने के लिए वो आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे एक प्रोविजन किया हुआ है इस स्कीम के तहत पे, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन का जो मेन उद्देश्य ये होता है कि जो वहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग ऐसे हैं जो एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको आइडेंटिफाई करके उनका ये पूरी स्कीम में क्या बेनिफिट है वो और क्रेडिट लिंकेज बैंक के साथ उनका टाई अप का लाइजनिंग करके उनका जो भी है स्कीम के तहत क्रेडिट लिंकेज फैसिलिटी जो है उनके लिए जो भी डीपीआर बनाना है, जो बैंक के साथ जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है वो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के करेंगे। रिसेंटली गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने मोर देन 20 डिस्ट्रिक्ट में डीआरपी की अपॉइंटमेंट की है और बहुत ही जल्दी बाकी के 13 डिस्ट्रिक्ट यानी कुल 33 डिस्ट्रिक्ट में डीआरपी अपॉइंटमेंट कर देंगे। ये स्कीम का मैक्सिमम बेनिफिट ये सब ले सके पूरे गुजरात में, तो इसके लिए हमें केसीसीआई और अभ्युदय की टीम बहुत आभारी है कि जिन्होंने वेबिनार कम सेमिनार का आयोजन किया और वेबिनार कम एनर्जी का आयोजन किया हुआ है। और मैं सभी यहाँ पे जो वेबिनार कम सेमिनार में ज्वाइन हुए हैं वो सभी एंटरप्रेन्योर को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी इस स्कीम का मैक्सिमम बेनिफिट उठाए। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो डीआरपी की अपॉइंटमेंट की हुई है उनकी जो डिटेल्स है मैं जल्दी से जल्दी हमारे गुजरात एग्रो के वेबसाइट पे डाल दूंगा, तो जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी आपको सपोर्ट चाहिए वो आपको वहाँ पे डीआरपी के सपोर्ट से मिल जाएगा। और मैं वंस अगेन मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ केसीसीआई की टीम को और अभ्युदय की टीम को जिन्होंने ये सेमिनार का वेबिनार का आयोजन किया है और इस स्कीम का मैक्सिमम बेनिफिट जो मिले वो एंटरप्रेन्योर को मिले उसका मैं उनको उनको बधाई देना चाहता हूँ। अभी आने वाले सेक्शन में और मैं आने वाले सेशन के लिए जो भी है इसके लिए जो टेक्निकल सेशन है उसके लिए मैं अभ्युदय टीम के जो स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के जो सीईओ में धवल रावत साहब जो ये पूरी स्कीम के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे और इसके बाद भी एक टेक्निकल सेशन रखा हुआ है इसमें आपको इस स्कीम का कैसे कैसे बेनिफिट मिलेगा वो भी आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच श्री शैलेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे शैलेश सर ने बताया कि एसपीएमयू जो यहाँ गुजरात स्टेट के लिए दिया है वो अभ्युदय ग्रुप है और अभ्युदय ग्रुप से आज फिजिकली भी देवांग शाह जी हमारे साथ अवेलेबल है। तो कोई भी क्वेश्चंस आपको रहे तो आप देवांग जी से पूछ सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर भी आपको दिया जाएगा, तो कभी भी आप उनसे टच में रह सकते हैं। थैंक यू शैलेश सर। नाउ आई रिक्वेस्ट श्री धवल रावल, CMD Abhyuday Group and SPMA Gujarat State. He is joining us from Ahmedabad. Sir, please say few words. Dhaval sir. Yes. Good morning to all and welcome to various dignitaries who are present on this digital platform and also on the dais. यह जो स्कीम है ये स्कीम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजनरी स्कीम है और यह स्कीम में
जैसे शैलेश जी ने बताया कि जो अनऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो अपना छोटा कारोबार या व्यवसाय कर रहे हैं। उन्हें इस स्कीम के द्वारा सीधी मदद देना और उनको मेन स्ट्रीम में लाना, उनके बिजनेस को, उनके व्यवसाय को बड़ा करना, ये स्कीम का लक्ष्य है। और गुजरात राज्य में इस वर्ष में करीब ऐसे 2000 फूड माइक्रो एंटरप्राइजेस को इस स्कीम के अंतर्गत विविध प्रकार की सहायता देने का सरकार का आयोजन है। मैं अभी ड्यू टू सम रीजन वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंट नहीं रह पाया हूँ, इसलिए जो प्रेजेंटेशन हमारी टीम से मिस्टर देवांग शाह आपको देंगे, लेकिन मैं स्कीम के बारे में कुछ जो बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव और इससे क्या क्या फायदा मिल सकता है वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हमारे इस स्कीम के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के 5 प्रकार के जो प्रावधान है, जिसके अंदर फूड माइक्रो एंटरप्राइज, सेल्फ हेल्प ग्रुप और एफपीओ के जो मेंबर है उन्हें इसमें सहायता मिलेगी। तो एक जो ये वर्टिकल है जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर है उन्हें अपना व्यवसाय के वर्किंग कैपिटल के लिए और छोटे साधनों की खरीदी के लिए रुपये 40,000 तक का एक सीड कैपिटल दिया जाएगा। इसकी डिटेल में जानकारी आपको प्रेजेंटेशन में मिलेगी। दूसरा, जो माइक्रो फूड एंटरप्राइज है, उस फूड माइक्रो एंटरप्राइज को ये स्कीम के अंतर्गत अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए या उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अगर कुछ प्लांट और मशीनरी की जरूरत है वो लेने के लिए रुपये 10 लाख तक का कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान है, जो कि आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35% रहेगा। और यह जो कैपिटल सब्सिडी है उसके लिए आपको डायरेक्टली जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की वेबसाइट है वहाँ पे डायरेक्ट आपको लॉग ऑन होना है, और वहाँ आपके लॉग ऑन होने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और जो शैलेश जी ने जो बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे और आपको वो कंप्लीट सपोर्ट करेंगे, हैंड हैंडलिंग प्रोवाइड करेंगे, और आपका जो प्रपोजल है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी के पास जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी जो है वो आपको सैंक्शन करके आपका प्रपोजल बैंक में भेजेंगे, और बैंक से आपका लोन सैंक्शन होने के बाद आपको सब्सिडी का ऑनलाइन जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में, बैंक के लोन अकाउंट में मिलेगा। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एफपीओ है, वो सब साथ में मिलके अपने मेंबर्स के लिए कोई कॉमन फैसिलिटी या स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। उसमें भी 35% का सब्सिडी का प्रावधान है। उसके बाद जो एक वर्टिकल है कि जिसमें जो इंक्यूबेशन सेंटर्स है वो हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत खड़ा करेंगे, जिसमें छोटे छोटे पायलट प्लांट रहेंगे। तो इस वर्ष में गुजरात में ऐसे करीब 4 जितने इंक्यूबेशन सेंटर हम लोग बनाने वाले हैं। तो ये पायलट प्लांट में जो माइक्रो फूड एंटरप्राइज है उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी विविध प्रकार के माइक्रो फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को स्थापित करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, मार्केटिंग के लिए, ये सब सपोर्ट वहाँ मिलेगा। और इसके अलावा जो वेरियस टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में विविध प्रकार के अभ्यासक्रम चलाते हैं, और बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बीटेक इन फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, ऐसे विविध प्रकार के इंस्टीट्यूट्स का साथ लेके हम लोग पूरे राज्य में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देने वाले हैं। और वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ट्रेनर है वो फूड माइक्रो एंटरप्राइज को ट्रेनिंग देंगे, जो ट्रेनिंग में प्रोडक्शन, क्वालिटी, पैकेजिंग, मार्केटिंग, सब कुछ चीज़ें के लिए उनको एक जिसको हम बोलते हैं कि हैंड होल्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सब स्कीम के लिए अलग अलग प्रकार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके लिए अलग अलग प्रकार के आवेदन के फॉर्म्स हैं, वो आपको भरने होंगे।
और ये पूरी जो जानकारी है वो जो लोग वहाँ पे अवेलेबल है और ऑनलाइन जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन हमारी टीम ने तैयार किया है। तो मैं देवांग को बोलूँगा कि आप वो प्रेजेंटेशन दे दीजिए। और इस स्कीम के लिए अगर कोई भी प्रकार की आपको सहायता की ज़रूरत है तो आप गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज और हमारी एसपीएमयू टीम का संपर्क कर सकते हैं। और खास करके जो लोग छोटा उद्योग करना चाहते हैं या छोटा उद्योग कर रहे हैं, वो सभी के लिए ये स्कीम ओपन है। और हमारा जो पूरे देश का जो एग्रीकल्चर जो है, दैट इज ए क्या बोलते हैं कि मेन कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी है। और उसके बाद जो स्मॉल एंड मीडियम माइक्रो एंटरप्राइज है, उनका नंबर आता है। तो हमें ये विश्वास है कि ये फूड माइक्रो एंटरप्राइज का विकास होने से, छोटे उद्योगों का विकास होने से लोगों को ज़्यादा रोजगारी मिलेगी। जहाँ पर अभी तक बड़े इंडस्ट्री का अभी तक सेटअप नहीं हुआ और रिमोट एरिया है, छोटे गांव है, टाउन प्लेसेस है, जो ब्लॉक लेवल है, वहाँ तक भी विकास का हम लोग इसमें पहुंचा सकते हैं। और ये छोटे और माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस है, वो हम लोग ये गुजरात में इस वर्ष में करीब 2000 प्रोजेक्ट को इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करके अलग अलग प्रकार के प्रोत्साहन देना चाहते हैं। तो मेरा ये सबको एक रिक्वेस्ट है कि आप ये प्रेजेंटेशन को भी देखिए, आने वाला टेक्निकल सेशन भी आप इन्वॉल्व होके आप लोग इसमें अपना जो भी तरफ से अपना योगदान दीजिए, इसमें आप जुड़िए। ये सभी के लिए विकास और फायदे का काम है। और मैं आप सबको विनती करता हूं कि आप कोई भी प्रश्न है तो हमें डायरेक्ट भी आप लोग पूछ सकते हैं। वहाँ पे हमारी टीम की ओर से मिस्टर रौनक चटवानी है जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, और मिस्टर देवांग शाह है जो प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर है। सो दे विल गिव यू ऑल द सपोर्ट एंड गाइडेंस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच धवल सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस। जैसे धवल सर ने कहा है कि पीएमएफएमई स्कीम जो है वो आप लोगों के लिए ही बनी है, तो आप जितना इसका यूटिलाइज कर सकते हो उतना करिए, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि देवांग शाह जी को प्लीज प्रेजेंटेशन अपना दे। प्लीज देवांग शाह जी प्लीज। Good morning, everyone, and welcome to all the dignitaries present with us offline as well as physically present online. Welcome to all the participants present physically as well as connected with us offline. So, ये presentation basically PMFA scheme के regarding है. Scheme कैसे, क्या scheme का उद्देश्य है, कैसे इसमें support मिलेगा, किन को मिल रहा है, उसके regarding है. So, PM formalization of micro food processing enterprise scheme, PMFME scheme. So as the name suggests, formalization, जो unorganized micro enterprises हैं, उनको हमें formal record में लाना है, formalize करना है, उनके लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी का प्रावधान किया है. So background of the scheme is, गवर्नमेंट का उद्देश्य है 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस को क्रेडिट लिंक सब्सिडी से हेल्प किया जाए, उन्हें हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए एंड फॉर्मलाइज किया जाए. इसके लिए 10,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 2020-21 टू 2024-25. ये स्कीम यूनियन कैबिनेट ने 2020 में अप्रूव की थी एंड इसकी गाइडलाइंस जून 2020 में आई थी. ये स्कीम फाइनली लॉन्च हुआ था जून 2020 में अंडर आत्मनिर्भर अभियान, जो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जी का एक विजनरी एम्बिशियस प्रोग्राम है. Now the objectives of the PMFME scheme. So the main aim of the scheme is
to increase the access of credit. जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, एफपीओज हैं, एसएचजी कोऑपरेटिव्स, उन्हें क्रेडिट को ज्यादा एक्सेस मिल पाए, लोन मिल पाए, सब्सिडी के थ्रू फंडिंग का अरेंजमेंट हो पाए, उन्हें ट्रांजिट करना है इनटू फॉर्मल नेटवर्क. जो अनऑर्गेनाइज्ड है, अनरजिस्टर्ड है, जो रिकॉर्ड्स में भी नहीं है, उन्हें रिकॉर्ड पे ले आना है और इनका इंटीग्रेशन किया जाएगा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल सप्लाई चेन में. बाय स्ट्रेंथनिंग ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का सपोर्ट दिया जाएगा. उन्हें एक्सेस मिलेगा कॉमन फैसिलिटीज लाइक कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, लेबोरेटरीज, कोल्ड स्टोरेजेस, पैकेजिंग, मार्केटिंग एंड इंक्यूबेशन सेंटर का भी प्रोविजन है. इन एंटरप्राइज को प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सपोर्ट देने का मेन एम है स्कीम का. एंड इनके साथ जुड़ी सारी इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस का भी इनमें ग्रोथ होगा. सो बेसिकली द 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम. जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहले आता है सपोर्ट टू इंडिविजुअल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड ग्रुप ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस. Then second one is FPO, SCG and supply chain along with the supply chain. Third will be common infrastructure, capacity building and last is branding and marketing support. So इस स्कीम में ये मेजर कंपोनेंट्स पे फोकस किया गया है एंड इन्हें स्ट्रेंथनिंग करना है. हम ईच एंड एवरी कंपोनेंट को इन डिटेल नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं. फर्स्ट वन है इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइज. सो द मेन एम ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी. ये कैपिटल सब्सिडी क्रेडिट के साथ लिंक्ड है, मींस ये सब्सिडी अवेल करने के लिए एक क्रेडिट अरेंजमेंट भी होना चाहिए लाइक लोन एक्सेट्रा. सो द कैपिटल सब्सिडी इज एट द रेट ऑफ 35% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड जो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है वो 10 लाख रुपीस पर यूनिट का है. एंड इसमें ओनर कंट्रीब्यूशन, बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन शुड बी मिनिमम 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट. सो कौन सी एंटरप्राइजेस एलिजिबल होती है इस स्कीम में एज ए इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइज जो ये स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं अंडर पीएमएफएमई? तो सबसे पहले ये एग्जिस्टिंग माइक्रो यूनिट्स होने चाहिए. इन केस ये एग्जिस्टिंग है देन दे शुड बी अनइनकॉर्पोरेटेड. उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, इधर एफएसएसआई, जीएसटी और पान उद्यम आधार इनमें से कोई एक चीज नहीं होनी चाहिए. एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय शुड बी लेस देन 10 वर्कर्स. एंड एग्जिस्टिंग यूनिट्स में भी जो ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रेफरेंस में दिया जाएगा. If it is a new enterprise, then ODOP प्रोडक्ट होना कंपलसरी है. Then जो भी एंटरप्राइज इसमें इन्वॉल्व है वो ODOP के नियम को फॉलो करना चाहिए. ODOP मीन्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. सो एवरी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसके बेसिस पे उसका प्रोसेसिंग होना चाहिए. Then the applicant should have the ownership right of the enterprise. वो उसके मालिकी में होनी चाहिए. The ownership can be partnership or proprietorship firm. एंड जो एप्लीकेंट है उनकी एज अबव 18 इयर्स होनी चाहिए एंड एटलीस्ट 8 स्टैंडर्ड पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए. एंड in every family only one person would be eligible for obtaining the assistance under the scheme. So सिर्फ एक ही मेंबर को मिलेगा. एंड जो फैमिली की डेफिनेशन है उसमें इंक्लूड होते हैं द एप्लीकेंट हिमसेल्फ, इटसेल्फ, स्पाउस एंड उसके चिल्ड्रन. एंड 10% ऑफ द ओनर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए मिनिमम. एज वेल एज ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी है, सो इसमें बैंक से असिस्टेंस लेना भी कंपलसरी रहेगा. एंड जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूड नहीं होगी. नाउ इस स्कीम में हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा डीआरपीस के थ्रू. जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन अपॉइंट किए गए हैं, दिस गाइज विल हेल्प यू इन फिलिंग द फॉर्म. आपका पूरा बैंक लोन कैसे एस्टेब्लिश करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, ट्रेनिंग अपग्रेडेशन करना है आपके यूनिट में. आपको जो भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए वो एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन होंगे, वो आपको इसमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. सो इस स्कीम के अंदर ही ये अपॉइंट किए गए हैं एंड दे आर प्राइमरली टू असिस्ट यू फॉर ऑब्टेनिंग द सब्सिडी अंडर दिस स्कीम. दे आल्सो प्रोवाइड इनपुट्स फॉर पीआईपीस, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान है, ओडीओपी प्रोडक्ट्स है, क्लस्टर में क्या स्ट्रेटेजीज रखना है, स्टडी ऑफ ग्रुप्स, ये सारा सपोर्ट डीआरपीस के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा. ये डीआरपीस अभी नॉमिनेट किए जाएंगे गुजरात एग्रो के ओर से एंड उनका लिस्ट भी उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा. यू कैन कॉन्टेक्ट देम वेरी सून. नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन सबमिशन एंड अप्रूवल लाइफ साइकिल. सो अभी किसी भी एप्लीकेंट को अप्लाई करना है तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक एप्लीकेंट को ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना रहेगा. देन एक ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप करना रहेगा अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. After that application would be submitted, then DRP के पास जाएगी एप्लीकेशन. They will recommend to the DLC committee, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी है.
वहां से अगर अप्रूव होता है आपका एप्लीकेशन, इफ इट इज एलिजिबल एज पर द क्राइटेरिया मेंशन, फिर वो लैंडिंग बैंक के पास जाएगी, एंड वंस लैंडिंग बैंक अप्रूव कर देगी, देन आपका फंड्स डिसबर्समेंट हो जाएगा थ्रू बैंक ऑल्सो एज वेल एज द सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑल्सो। सो ये फर्स्ट कैटेगरी थी जिसमें इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइज थे, एंड सेकंड आ ग्रुप कैटेगरीज। सो ये स्कीम ग्रुप कैटेगरीज में भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है इफ इट इज अ क्लस्टर्ड बेस्ड ग्रुप्स और ग्रुप सच एज एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स, इन सबको भी शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग, इन सब में आपको हेल्प किया जाएगा इस स्कीम के अंडर। सो ओडीएफवी अप्रोच, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप, ये एक न्यू स्कीम है गवर्नमेंट का टू प्रमोट द प्रोडक्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड टू ग्रो देम। सो बेसिकली आप देख सकते हैं जैसे आनंद, भरूच, नर्मदा एंड सूरत, सो इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बनाना क्रॉप को आइडेंटिफाई किया है। सो बनाना बेस्ड प्रोडक्ट आप कोई भी उसके रिगार्डिंग फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि जाम हो गया, बनाना जेली, बनाना स्मूदीज, बनाना चिप्स, बनाना वेरियस पैकेजिंग मटेरियल्स, मैन्योर, इन सब का आप यूज कर सकते हैं बनाना स्टेम से। देन सेकेंडली जूनागढ़ में कोरिएंडर आइडेंटिफाई किया है इस ओडीओपी, उससे आप कोरिएंडर चटनी, सॉस, सूप, केचप, फॉडर फॉर स्पेंट ग्रेन्स, इन सब का आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली सुरेंद्र, पाटन एंड महसाना में क्यूमिन का मेंशन है एज अ ओडीओपी क्रॉप। कच्छ डिस्ट्रिक्ट में डेट पाम असाइन किया गया है। डांग में मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट हैं जैसे मिलेट फ्लोर, मिलेट बेस्ड कुकी, स्नैक्स। देन पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में ग्राम बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं लाइक चना स्प्राउट्स, बेसन, नमकीन, पूरन पोली, आरटी स्नैक्स, इन सब के आप माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर आप ये एस्टेब्लिश करते हैं तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सब्सिडी, दैट इज क्रेडिट लिंक सब्सिडी एट 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्लस्टर, इसमें द्वारका, जामनगर, राजकोट, अमरेली, सो इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ग्राउंडनट स्पेसिफाई किया है एज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। सो अब ग्राउंडनट से माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए पीनट बटर का प्लांट है, ऑयल, रोस्टेड पीनट्स, बेकरी आइटम्स, देन फॉडर फॉर मिल्क केक, पीनट बार्स, ये सब के माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं एज ए न्यू यूनिट, एज वेल एज द एग्जिस्टिंग यूनिट भी इनका बेनिफिट ले सकते हैं। वडोदरा में तुवर दाल है जिससे आरटी स्नैक्स बन सकते हैं। देन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पैडी एंड राइस है जिससे अगेन फ्लेक्ड राइस, स्नैक्स, रेडी टू यूज बैटर, ये सब का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज महिसागर जिसमें पपैया का मेंशन्ड है एज अ ओडीओपी प्रोडक्ट, उसमें हम पपैया पल्प, बेवरेजेस, जाम, जेली, विनेगर, इन सब का प्रोडक्शन कर सकते हैं। बनासकांठा में पोमोग्रेनेट है जिसमें बेवरेजेस में यूज हो सकता है। अरवली में पोटैटो, वलसाड में सपोता, मोरबी में सीसम, तो सीसम से हम माउथ फ्रेशनर है, सीसम ऑयल, चिक्कीज एंड बिस्किट्स, सच प्रोडक्ट्स का हम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, एज वेल एज एग्जिस्टिंग यूनिट्स भी इनका बेनिफिट ले सकते हैं। देन तापी में मल्टी फ्लोर ग्रेन बेकरी स्नैक्स आइटम कर सकते हैं फ्रॉम सरगम प्रोडक्ट्स। एंड दाहोद में सोयाबीन है ओडीओपी, सो बेस्ड ऑन सोयाबीन, सोया मिल्क, सोया फ्लोर, रोस्टेड मसाला सोया, these items can be manufactured. So now coming to the second component, this is seed capital. So जो self help group है basically उसमें काफी members रहते हैं, so per member seed capital amount of ₹40,000 sanction किया गया है under PMFME scheme. So this particular subsidy is for working capital and purchase of small tool, जो उनका डे टू डे वर्किंग के लिए जो कैपिटल यूज होता है एंड कुछ छोटे इक्विपमेंट होते हैं, औजार होते हैं, वो लेने के लिए ये स्कीम में सब्सिडी का प्रोविजन है। सो दिस विल बी गिवन एज अ ग्रांट, ये सब्सिडी सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी जाएगी बाय द स्टेट नोडल एजेंसी जो गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। एंड देन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो आगे अपने मेंबर्स को एज अ लोन पास ऑन करेंगे जो टू बी रिपेड करना होगा उनको एट द एंड ऑफ द टेन्योर टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप ओनली। Now coming to the third component of the scheme, so this is farmer producer organization FPO and producer cooperatives. So इसमें provision किया गया है like 35% of the subsidy will be given, which should also be credit linkage. Means credit subsidy, credit link subsidy है again at 35%. इसमें training support भी दिया जाएगा and the maximum limit of the grant would be prescribed later on by the under the PMFME scheme. सो इसमें भी जो एफपीओज एंड प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव हैं उनको अगर एलिजिबल रहना है तो उसका क्राइटेरिया मेंशन्ड है।
जैसे जो वो दे शुड बी प्रेफरेबली एंगेज्ड इन ODOP प्रोडक्ट्स, जो हमने लिस्ट अभी आपको बताया, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इनका मिनिमम टर्नओवर 1 करोड़ होना चाहिए एंड इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, जो ये न्यू यूनिट एस्टेब्लिश कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग यूनिट है, वो शुड नॉट बी मोर देन द टर्नओवर। उनका जो प्रेजेंट टर्नओवर है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए फॉर द एग्जिस्टिंग यूनिट्स। एंड द मेंबर्स शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 years in the similar product, एंड उनके पास 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज भी होने चाहिए। सो बेसिकली अगर एफपीओस को इन स्कीम में अप्लाई करना है तो these are the eligibility criteria, एंड उनको भी सपोर्ट एट द रेट ऑफ 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट दिया जाएगा। Now coming to the fourth component, which is common infrastructure. So common infrastructure का support FPOs, SCG, cooperatives and any government private enterprises को दिया जाएगा। So ये जो support है common infrastructure का, this can be used for establishing premises for sorting, grading, warehousing and cold storage support at farm gate. Then common processing facilities का support दिया जाएगा for ODOP produce, and incubation centers भी establish होंगे, which should involve one or more product line, जो on which will be given on a hiring basis, जिसको आप rental and hire pay करके उसको use कर सकते हो to manufacture the produce. The fifth component was branding and marketing. So branding and marketing support again will be given to the groups such as FPOs, SHG, cooperatives or the SPV of micro food enterprise. ये support जो भी आप ODOP produce under this scheme में आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसको प्रमोट करने के लिए है। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का 50% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर विल बी गिवन एज पर द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स इन द स्कीम। वो लिमिट्स भी वापस प्रिस्क्राइब होना रहेगा विद इन अ शॉर्ट टाइम अंडर PFME स्कीम। एंड द एलिजिबल आइटम्स फॉर सपोर्ट विल बी लाइक ट्रेनिंग रिलेटिंग टू द मार्केटिंग कैसा करना है उसका ट्रेनिंग का अगर कॉस्ट है तो उसका 50% का एक्सपेंडिचर एज अ सब्सिडी विल बी गिवन। देन डेवलपिंग अ कॉमन ब्रांड एंड पैकेजिंग including standardization to participate in common packaging program. So उसमें आपको help मिल सकता है। Then marketing tie-ups will be given with national and regional retail chains and state level institutions. Even quality control to ensure the product quality parameters meet the required standards. इन सब में आपको branding and marketing support मिलेगा under the PMFME scheme. Now the next is capacity building and research. So under the PMFME scheme, national institutions होते हैं जैसे कि NIFTM and IFPT, इन institutions को financial assistance provide किया जाएगा for research and capacity building. Capacity building program होंगे, आप research ये लोग आपको provide कर सकते हैं, training इन सबका इनके inputs के लिए भी इन institutes को promote किया जा रहा है। Now support will also be given to the state level technical institutions to conduct the capacity building programs for training of district resource person, जो आपको hand holding support provide करेंगे at the individual micro enterprise level, and also to provide monitoring support to the DRPs. The training will also be given to support group and individuals. So entrepreneurship development programs होते हैं इनके, how to produce particular items, उनके ऊपर इनका guidance रहता है, how to get the registration such as FSSI standards, उद्योग आधार, GST registration, इनमें भी इनका support रहेगा। Now coming to the latest development under this scheme. So this scheme, now there are some advancement under this scheme. Government ने कुछ additional initiatives लिए हैं, like banks के साथ tie-up हुआ है under this scheme, and MOU has been signed between Ministry of Food Processing of India and 11 other banks such as Union Bank of India, Canara Bank, Bank of Maharashtra, UCO Bank, Bank of India, Bank of Baroda, Axis Bank, Central Bank of India, Punjab and Sindh Bank, Punjab National Bank and HDFC Bank. So इन banks के साथ एक memorandum of understanding sign किया गया है, and they are ready to provide credit links under to avail the subsidy under this scheme for the applicants. Even एक और new advancement है, like credit guarantee trust fund for micro and small enterprise, जिसे हम CGT MSE cover कहते हैं, वो up to 2 crore rupees collateral free loan के लिए eligible है. So this support has also been advanced to the applicants under PMFME scheme. So काफी सारे advancement हैं, and government भी काफी initiative ले रही है to formalize the micro and small enterprises
so that they can avail the benefit under this scheme and the objective of the scheme can be achieved. So basically these are the primary guidelines of the scheme and इन्हें कैसे establish करना है, क्या government का हेतु है इसके पीछे, and what are the objectives and aims of the government were presented in this slide. Thank you. For any queries, you can contact us anytime. We are part of SPMU team Abhyuday Group. Even Gujarat Agro is always open for your any queries and answers. And any other further questions you can come upon in the technical question round. Thank you. थैंक यू वेरी मच मिस्टर देवांग शाह. देवांग शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप कभी भी इनसे क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं. अभी हमारे साथ जस्ट जुड़े हैं हंसराज गजेरा साहब. हंसराज गजेरा साहब हमारे लघु उद्योग भारती के प्रेसिडेंट है राजकोट के. काफी लघु उद्योग के लिए उन्होंने काम किया है. रिक्वेस्ट करता हूँ सर प्लीज 2 शब्द कहे हंसराज जी. નમસ્કાર. મંચ સર્વે મહાનુભાવો અને આપ સર્વે આ સેમિનારમાં ભાગ લઈ રહેલા સદસ્યો, આપણે જાણીએ છીએ કે ગવર્મેન્ટ કઈ ને કઈ બધા માટે કંઈક કરતી હોય છે અને ખાસ કરીને એમએસએમઈ એટલે કે માઇક્રો જે લોકો નાના નાના ઉદ્યોગો કરતા હોય છે, સ્વયં પોતે લડાઈ લડતા હોય છે, એ પરિવારના ભરણ પોષણ માટે હોય, બાકીના લોકો એની સાથે જોડાયેલા એમના માટે ના હોય અને ધીરે ધીરે બધા ગ્રોથ કરતા હોય છે. બધા આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે 2 મોટા નામ અત્યારે ખાલી યાદ કરીએ કે બાલાજી વેફરનું આપણે નામ લઈએ છીએ, અત્યારે ઇન્ટરનેશનલ લેવલે એ લોકો આવ્યા. એની શરૂઆત આપ સર્વે કરો છો એવી જ એક શરૂઆત હતી. નિર્માનું નામ લઈએ તો એ પણ સાયકલ ઉપર એના તપેલામાં બધા પાવડર્સ ને બધું બનાવતા હતા અને આજ આપણે જોઈએ છીએ કે એ આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે એનું માર્કેટિંગ બધું કરે છે. તો હું લઘુ ઉદ્યોગ ભારતીને લીડ કરું છું. અત્યારે જે હું અહીંયા એક અમારી મીટિંગ પૂરી કરીને જ આવ્યો છું કે આજકાલ ઇમ્પોર્ટ ઘણી બધી વસ્તુઓ થાય છે, તો આ ઇમ્પોર્ટ થતી વસ્તુઓ અહીંયા કેમ બને એના એક પ્રયાસ રૂપે અમે 18, 19, 20 તારીખે એક બધા શોનું આયોજન કરીએ છીએ કે લોકોને બતાવવાના કે આટલી આટલી આઈટમો 350 કે રાખી હજારો આઈટમ આયાત થાય છે. એમ આપણે ઘરાવ જે કઈ નાની મોટી વસ્તુઓ ઘણી બધી બનાવતા હોય, કોઈ સાબુ બનાવતું હોય, કોઈ નાના મોટું ફરસાણ બનાવતા હોય, તો આવા લોકોને અમારા લઘુ ઉદ્યોગ ભારતી પણ આ માટે કામ કરી રહી છે. માઇક્રો ફાઇનાન્સ ની અંદર ભરત કામ હોય, ગૂંથણ કામ હોય, આવું જુદું જુદું કઈ મહિલાઓ કામ કરતા હોય. આજકાલ સરકારે આપણે ત્યાં ઘણી બધી યોજનાઓ અહીંયા આપણે બતાવી. આવી જ મહિલા ઉત્કર્ષની યોજના અત્યારે સરકારે કરી છે. હું રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંકમાં ડિરેક્ટર છું, તો અમે પણ 10 મહિલાઓના ગ્રુપમાં 1 લાખ રૂપિયા વગર વ્યાજના અત્યારે આપવાની શરૂઆત કરી છે. અને સરકાર તરફથી જ છે કે જેને કોઈ ઘરે નાના મોટા આવા બિઝનેસ કરતા હોય તેને એક સપોર્ટિંગમાં એક સપોર્ટ રહે. ઉપરાંત એમએસએમઈ માંથી નહીં પણ ગવર્મેન્ટની ઘણી બધી યોજનાઓ છે અને અત્યારે પ્રધાનમંત્રીની આ જે દિશામાં કામ કરી રહ્યા છે એ આપણે અહીંથી આ બધું ઘણું બધું બતાવ્યું. હું તો લેટ આવ્યો છું, તો આ દિશામાં પણ આપ સર્વે લાભાર્થીઓ જે કઈ મહિલાઓ અને નાના નાના ગૃહ ઉદ્યોગ ચલાવતા હોય એને એક મદદરૂપ થવા માટેનો આ એક પ્રયાસ છે. આપણને ઘણી બધી યોજનાઓ સરકારની હોય પણ આપણને ખબર નથી હોતી. ઘણી બધી એવી પ્રોડક્ટ હોય પણ આપણને ખબર નથી હોતી. લોકોની જરૂરિયાત ઘણી બધી હોય પણ આપણને ખબર નથી. આજે કાલ સિનેરીઓ બદલાતો જાય. પેલા આપણે ઘરમાં બધા અથાણા ઘણું બધું બનાવતા હતા, ફરસાણો બધી બનાવતા હતા, મીઠાઈઓ બનાવતા હતા વાર તહેવાર. હવે આ બધું ચાલ્યું ગયું છે. હવે લોકોને રેડી ફૂડ, રેડી પેકેટ જ જોઈએ. આપણા છોકરાઓની આખી સિસ્ટમો બદલાણી છે કે રેડી ટુ યુઝ બધા કરવા ટેવા લઈને આપણા ફેમિલીઓ નાના થઈ ગયા છે. એટલે કદાચ આપણે બનાવવા ધારીએ ને તો એ વાસી થઈ જાય ને ફેંકી દેવું પડે, કદાચ બનાવો તો. એટલે આ એક વિકલ્પ છે કે ભાઈ નાના નાની જે કઈ વસ્તુઓ બનતી હોય તો રેડીમેડ મળતી હોય તો લોકો એ જ પ્રિફર કરતા હોય છે. તો આપ સર્વે ગ્રુપમાં અહીંયા રિસન છે, હું પછી એ વિગતો લઈ લઈશ અને તમને કેવી રીતના લઘુ ઉદ્યોગ ભારતી છે આખા ઇન્ડિયા લેવલનું એક એસોસિએશન છે અને નાના લોકોથી લઈને મીડિયમ અને એમએસએમઈ ને ક્યાં ક્યાં મદદરૂપ થાય આવું જ બધું કાર્ય કરતી હોય છે.
તો અમારાથી લઘુ ઉદ્યોગ ભારતી તરફથી જે કઈ મદદરૂપ થતી હશે સરકારની યોજનાઓ હોય કે બેંકેબલ હોય કે એમાં અમે આપણે હેલ્પફુલ થઈ શકશું. એમાં અમે માર્કેટિંગ થી લઈને બધી બાબતની મદદ કરતા હોય છે. અમારે મહિલાઓ પણ એમાં અમારી મેમ્બરશિપ ધરાવતા હોય છે. તો આપ સર્વેને પણ એમાં જોડાવ અને આ સેમિનારનો વધારેમાં વધારે આપ સર્વે બધા જે કઈ યોજનાઓ છે એનો લાભ લેવો. આજે બધા અધિકારીઓને બધાનો ભાવ એક છે કે ભાઈ નાના લોકોને મદદરૂપ થવું, એટલા માટે થઈને આ બધી યોજનાઓના સેમિનાર ને બધી મહેનત કરતા હોય છે. પણ સામે આપણે લોકો જે કઈ એના લાભ પૂરતા લઈ નથી શકતા, તો એ ખરેખર લેવા જોઈએ. એટલું કઈ મારી વાત પૂર્ણ કરું છું. અસ્તુ, જય હિન્દ. थैंक यू वेरी मच हंसराज जी. हंसराज सर यही राजकोट में ही है, तो आप कभी भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. मैं नंबर शेयर कर दूंगा आप लोगों से. थैंक यू सर फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम. नेक्स्ट सेशन विक्रांत राणा सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यू दिल्ली से, जो पीएमएफएमयू निफ्टेम के कार्यरत है और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने निफ्टेम एक इंस्टीट्यूट है, उसको ये सारा काम सौंपा हुआ है पीएमएफएमयू का. नाउ उससे पहले मैं हमारे जो सेक्रेटरी जनरल है भरत सर, उनको थैंक्स के लिए आमंत्रित करता हूँ. भरत सर. थैंक यू नकुल. नॉलेज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के और से मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू थैंक ईच वन ऑफ यू दोज हु हैव जॉइंड इन द डायस ऑफ द डायस, ऑल डिग्निटरीज एंड ऑल द डेलीगेट्स. मैं मानता हूं कि ये जो सेमिनार है इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर एवरीबडी दोज हु डू नॉट नो अबाउट द स्कीम्स. और हंसराज जी ने बिल्कुल सही बताया कि जितने भी सारे स्कीम्स होती है, बहुत सारी स्कीम्स के बारे में मालूम नहीं होता है लोगों को. और ये जो स्ट्रीमलाइन करने की बात है, यू नो व्हेन धवल जी राइटली मेंशन कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सही दिशा में लाने के लिए और ये स्कीम्स का जो फायदा लाना है, वो मुझे लगता है ये सेमिनार की वजह से काफी लोगों को पता चलेगा. एंड आई थैंक ईच वन ऑफ यू एंड प्राइमरीली ऑल द स्कीम्स जो गवर्नमेंट की होती है, दैट कैन नॉट बी ड्रिवन डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट. तो जैसे अभ्युदय ने मतलब धवल जी ने मतलब जितना भी काम किया है, मैं मानता हूँ कि दिस इज गोइंग टू टेक अस टू द नेक्स्ट लेवल. मैं केसीसीआई के तौर से और अभ्युदय के तौर से मतलब आई एम थैंकिंग ईच वन ऑफ यू. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू वेरी मच सर. विक्रांत राणा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं. मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपना प्रेजेंटेशन दे. विक्रांत जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो. हाँ विक्रांत जी, आवाज आ रही है आपकी. प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए आप, अगर पॉसिबल है तो, या फिर आपका प्रेजेंटेशन प्लीज स्टार्ट कर दीजिए. एक मिनट, आई विल मेक यू अ प्रेजेंटर. हाँ विक्रांत जी, प्लीज शेयर योर स्क्रीन. आप सभी मेरा प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं? नहीं, अभी तक शुरू नहीं हुआ, पर प्लीज 1 सेकंड. हाँ जी, प्लीज स्टार्ट. Good morning everyone who are all present in this today's webinar. तो आप सभी को मेरा वार्म वेलकम. तो आज हम बात करने वाले हैं पीएमएफएमई योजना के बारे में. इसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम. ये एक योजना केंद्र प्रायोजित योजना है जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म उद्योग का संबल भी बोला जाता है इस योजना को, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, करीब 25 लाख यूनिट्स जो ऑलरेडी ऑपरेटेड हैं, जो चल रहे हैं, लेकिन उनके चलने में थोड़ी उनको कुछ कठिनाइयां हैं जो उनको फेस करनी पड़ती हैं. आज हम उन्हीं कठिनाइयों के बारे में बात करेंगे और कैसे पीएमएफएमई योजना उन कठिनाइयों को, उन छोटे लघु उद्योगों की कठिनाइयों को दूर करने में बहुत ही एक बड़ा योगदान प्रदान करने वाली है. हम उन सबको डिस्कस करेंगे.
तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन अब स्टार्ट करता हूँ। पीएमएफई योजना बेसिकली स्टार्ट किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर, क्योंकि इसका बढ़ावा जो हम देना चाहते हैं, लोकल को बढ़ावा देके उसको एक ग्लोबल स्केल पे हमारा, हम कह सकते हैं वोकल फॉर लोकल। तो जो लोकली जो हम कुछ प्रोड्यूस, जो कि माइक्रो एंटरप्राइज प्रोडक्शन करते हैं, जो छोटे स्केल पे प्रोड्यूस होती है, उनको एक ग्लोबल आउटरीच प्रदान करना इस योजना का एक अहम उद्देश्य है। हम बात करते हैं इस योजना के अंदर, जैसे कुछ बहुत सारे जो माइक्रो एंटरप्राइज है उनको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे हम बात करते हैं लैक ऑफ क्रेडिट हो गया, उनके पास प्रॉपर टेक्निकल सपोर्ट उनको नहीं है, क्रेडिट की सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल उनको सपोर्ट हम कह सकते नहीं है, मार्केटिंग रिलेटेड उनको कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत सारी कठिनाई, जिनकी वजह से उनकी जो हम बात करना चाहते हैं कि ये एक तरह का चैलेंज है जो वो फेस करते हैं, जिनकी वजह से उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ सामने आती हैं। कठिनाइयों की वजह से वो अपने प्रोडक्शन को स्केल अप नहीं कर पाते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक लेवल तक सेल नहीं कर पाते हैं। उन सभी कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए इस योजना को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया है। हम बात करते हैं जैसे कुछ मौजूदा सूक्ष्म खाद्य उद्यम हैं जिनको हम इस योजना के अंतर्गत वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराना इस योजना का अहम उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। देश के अंदर करीब 25 लाख इकाइयां हैं जो कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, नियरली 25 लाख यूनिट्स। इनमें से करीब 66% इकाइयां जो कि रूरल पार्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, और उनमें से जो 80% है, 80% जो इकाइयां हैं वो फैमिली बेस्ड बिजनेस हैं, पारिवारिक जो आधारित उद्यम है। तो ये जो जितनी भी छोटी इकाइयां हैं बहुत ही छोटे स्केल पे काम कर रही हैं। तो इनके हम बात करते हैं आगे, तो ये बेसिकली माइक्रो एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में फॉल करती हैं। अब आगे हम बात करते हैं इस योजना के अंदर क्या, जो मैं आपसे अभी बात कर रहा था कि बहुत सारी चुनौतियों का इन छोटी इकाइयों को सामना करना पड़ता है, वो किस प्रकार की चुनौतियां हैं। अगर बात करते हैं कि आधुनिक तकनीक, लैक ऑफ एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, क्योंकि छोटी इकाइयों के पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की कमी है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लैक ऑफ अ बेसिक अवेयरनेस ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट, अगर बात करते हैं तो क्वालिटी और हाइजीनिक एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, कुछ हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं यहाँ पे, तो उनके पास कुछ पैरामीटर नहीं है, बेसिक अवेयरनेस नहीं है, कैसे एक पर्टिकुलर फूड को हम क्वालिटिकली अच्छा कर पाए, तो इस अभाव की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। लैक ऑफ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्किल्स, अगर उनके पास अपना सामान बना तो लेते हैं लेकिन वो बेचने के लिए उनको प्रॉपर मार्केटिंग और ब्रांडिंग की स्किल्स उनके पास नहीं है। सप्लाई चेन उनके पास पूरा तरह सेटअप नहीं है। ये बहुत सारी एक कठिनाइयाँ जिनका माइक्रो यूनिट्स को एक छोटे स्केल पे जो काम कर रही हैं भारत देश में, उनको इनका सामना करना पड़ता है। इस स्कीम का मेन उद्देश्य इन्हीं सारी कठिनाइयों को का निवारण करना है। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एम की बात करते हैं, तो इस टू मॉडर्नाइज एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल एंटरप्राइज एंड फॉर्म, जितनी भी जो छोटी माइक्रो एंटरप्राइज जो पहले से चल रही हैं उनको फॉर्मलाइज करना, एक प्रॉपर से जो नॉन फॉर्मलाइज वे में काम कर रही हैं उनको फॉर्मलाइज करना, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना, उनको स्केल अप करना, उनकी प्रोडक्शन को स्केल अप करना by giving them the institutional credits, trainings, providing a proper awareness regarding the, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो ये स्कीम कवर कर रही है। दूसरा, इस योजना का उद्देश्य फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव की पूरी संपूर्ण श्रृंखला जो है उनको मदद करना। हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्या क्या सहायता इस स्कीम के अंदर अलग अलग स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड की जा रही है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत कैपेसिटी बिल्ड करना। जैसा कि एक मेन मैंने बताया कि आपको बहुत सारे माइक्रो या एफपीओ हैं या उनको बहुत सारी कठिनाइयां, उनके कैपेसिटी को बिल्ड करना बाय गिविंग देम द टेक्निकल ट्रेनिंग, उनको टेक्निकल प्रोवाइड करना, स्किल ट्रेनिंग देना, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना। उसके बाद क्रेडिट, जो बहुत एक ही बड़ा अहम मुद्दा है माइक्रो यूनिट्स के लिए, स्टार्ट करने किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए उनको क्रेडिट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।
तो एक्सेस टू क्रेडिट, बेसिकली क्रेडिट को उनके क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड कराना। दूसरा सपोर्ट टू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव और अलग अलग वैल्यू चेन में उनको सहायता करना। फिर ऑर्गेनाइज सप्लाई चेन उनको प्रोवाइड करना जिससे कि उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग को स्ट्रेंथ मिले, रीजनल लेवल पे मिले, ग्लोबल लेवल पे मिले, वो आगे अपना प्रोडक्ट को अच्छी जगह पे सेल कर पाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इस स्कीम के कवरेज की। अगर फंडिंग पैटर्न, क्योंकि ये इसमें जो फंडिंग पैटर्न है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों डिवाइड करेंगे जो सब्सिडी है, तो बेसिकली इस योजना 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस को 5 साल के पीरियड में, 5 वर्षों के पीरियड में फॉर्मलाइज करना है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 60-40, 60 और 40 के अनुपात में जो साझा खर्च किया जाएगा, मतलब 60% का जो अमाउंट होगा वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40 स्टेट गवर्नमेंट देगी। फिर अगर बात करते हैं उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के बारे में, तो उनका जो अनुपात है सेंट्रल गवर्नमेंट 90% और स्टेट गवर्नमेंट 10% के अनुपात में खर्च करेगी। अगर अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो वो 100% जिनके अंदर लेजिस्लेचर नहीं है, विदाउट खर्च करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं इस स्कीम के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अप्रोच को ये फॉलो करती है स्कीम। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मतलब एक जिला एक उत्पाद। सरकार ने एक बेस लाइन स्टडी स्टेट गवर्नमेंट को सौंपी। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बेस लाइन स्टडी किया जिसमें जल्दी खराब होने वाले पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट को मद्देनजर रखते हुए ODOP को सेलेक्ट किया गया। ODOP का मेन उद्देश्य जो रीजनली या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रोडक्शन जिस पर्टिकुलर क्रॉप की होती है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए उसको प्रोसेसिंग को करके दूसरे राज्यों पे जहाँ पे उस चीज़ का अभाव है वहाँ पे उसको सेल करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो ये एक मेन उद्देश्य था ODOP का कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके उस एरिया में और उसकी प्रोसेसिंग करके हम उस प्रोडक्ट को आगे बेच सकें। अगर बात करते हैं सपोर्ट नए इंडिविजुअल माइक्रो यूनिट्स की, जितने भी माइक्रो यूनिट्स जिनका पहले से कोई एग्जिस्टिंग माइक्रो एंटरप्राइज या कोई भी यूनिट नहीं है फूड प्रोसेसिंग के लिए, वो कम्प्लीटली नए हैं, उनको जो सपोर्ट मिलेगा वो ODOP के अंदर ही मिलेगा। वो बस ODOP जो उनके जिले में उत्पाद अप्रूव हुआ है उस, जैसा कि आपको पिछले स्लाइड में स्पीकर ने बताया कि वहाँ पे ODOP का पूरा आपको लिस्ट दिखाया है, उसी ODOP के जो आपके जिले में अप्रूव अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको नई यूनिट के लिए ODOP के अंदर ही सपोर्ट दिया जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल, जो कि इसमें हम मेन टारगेट एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल हैं जो 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइज जो रन हो रहे हैं एग्जिस्टिंगली माइक्रो स्केल पे, जिनको हमें फॉर्मलाइज करना है इस स्कीम के उद्देश्य के हिसाब से। तो उनका जो प्रेफरेंस है उनको ODOP के अंदर मिलेगा, लेकिन अगर वो पहले से किसी पर्टिकुलर नॉन ODOP में भी काम कर रहे हैं तो उनको नॉन ODOP के अंदर भी सपोर्ट दिया जाएगा अगर वो 2 से 3 साल उनको ऑपरेशन में हो चुका है मिनिमम। फिर बात करते हैं हम ग्रुप के सपोर्ट की। तो ग्रुप के सपोर्ट में नॉन ODOP के अंदर उनको सपोर्ट बेसिकली सपोर्ट जो ODOP के बेसिस पे ही दिया जाएगा। सपोर्ट टू ग्रुप्स प्रोसेसिंग अदर प्रोडक्ट इन सच वुड ओनली बी, अगर नॉन ODOP का सपोर्ट उनको तब दिया जाएगा अगर वो पहले से नॉन ODOP में काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है उस पर पर्टिकुलर क्रॉप की। तो ये बेसिकली जो आपका दिया जाएगा सपोर्ट वो ODOP को दिया जाएगा। अगर वो पहले से काम कर रहे हैं चाहे वो ग्रुप हो या एग्जिस्टिंग माइक्रो एंटरप्राइज हो तो उनको प्रॉपर उसकी नॉलेज होनी चाहिए जो काम वो पहले से नॉन ODOP के अंदर कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं इसी के अंदर कि सपोर्ट फॉर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, ये ग्रुप के लिए सपोर्ट है कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सपोर्ट है वो ODOP के अंदर ही रहेगा, बस ODOP के लिए ही दिया जाएगा। इन केस अगर सपोर्ट इन केस ऑफ सपोर्ट फॉर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग स्टेट और रीजनल लेवल पे जो सपोर्ट दिया जाएगा वो सेम प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नॉट हैविंग दैट प्रोडक्ट एज ODOP कुड आल्सो बी इंक्लूडेड। बेसिकली अगर रीजनल लेवल पे सपोर्ट लेना चाह रहे हैं नॉन ODOP के अंदर तो नॉन ODOP के अंदर रीजनल और स्टेट लेवल पे बहुत सारे जो हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मिलके उसको ले सकते हैं। कॉमन ब्रांडिंग और पैकेजिंग जनरेट करके वो मार्केटिंग ब्रांडिंग का सपोर्ट उनको प्रोवाइड किया जाएगा। हम बात करेंगे इस विस्तृत में आने वाली स्लाइड्स में कि वो सपोर्ट कितना होगा और कैसे होगा। तो ये स्कीम और सपोर्ट भी करती है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस को, बेसिकली रॉ मटेरियल से लेके की अवेलेबिलिटी से लेके उनके जो प्रोडक्ट बनने के बाद जो सेल होगा मार्केट में वहां तक पूरा सपोर्ट बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस में भी दिया जाएगा। प्रोविजन ऑफ सेंटर हो गए, कॉमन प्रोसेसिंग लाइंस हो गई,
उसके लिए भी यहाँ पे ग्रुप कैटेगरी को सपोर्ट दिया जाएगा, जैसे कि आपके फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ ग्रुप्स, कोऑपरेटिव्स, इन सबको ट्रेनिंग, R&D, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रोविजन ऑफ विच वुड बी प्राइमरली फॉर ODOP। तो ODOP एक बेसिकली अहम मुद्दा है जो ODOP को इसमें हाईलाइट किया हुआ है कि ODOP के बेसिस पे ही ये सारे सपोर्ट जो है दिए जाएंगे, जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग ब्रांडिंग के सपोर्ट है। हम आगे अगर बात करते हैं प्रोग्राम के कंपोनेंट्स, जो अलग अलग कंपोनेंट्स जो ऑलरेडी आपको बताए गए थे कि 4 कंपोनेंट, जैसे सपोर्ट टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज सपोर्ट, उसमें टेक्निकल सपोर्ट है, टेक्निकली ट्रेनिंग का सपोर्ट जो हम कह रहे हैं। दूसरा आपका फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो कि फाइनेंशियल आपको सब्सिडी, क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही है सरकार के द्वारा, वो सपोर्ट है। दूसरा ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट, जो ग्रुप के लिए सपोर्ट है, ग्रुप कैटेगरी के लिए ODOP के अंदर। सपोर्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन मीन्स बेसिकली जो आपके स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग जो स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन में उनको रिसर्च के लिए अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उनको स्ट्रेंथन करना, और आगे बेसिकली उस इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को डिसमिनेट करना है छोटे लेवल पे, माइक्रो बेनिफिशियरी तक, एप्लीकेंट तक और अलग अलग स्टेक होल्डर तक। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को सेटअप करना, ये स्कीम के अलग कंपोनेंट है। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों को। अगर व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम जो इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, उनको 10 लाख तक की क्रेडिट लिंक सब्सिडी है, जो कि 35% आपका जो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका प्लांट, मशीनरी वगैरह जो भी आता है, उसको आप उसके ऊपर आपको 35% की सब्सिडी है एप्लीकेंट को, जो कि अधिकतम 10 लाख तक हो सकती है। अब उसके अंदर क्या होता है, अगर प्रोजेक्ट की जब जितना भी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एप्लीकेंट का बनेगा, उसका मिनिमम 10% एप्लीकेंट को अपनी तरफ से लगाना है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन, और बचा हुआ 90% वो बैंक लोन का पार्ट रहेगा। फर्दर एलिजिबिलिटी के लिए आप विस्तृत गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं। हमारी जो मंत्रालय की वेबसाइट पे pmfme.mospi.gov.in की वेबसाइट पे हमने गाइडलाइन पब्लिश की हुई है, वहाँ पे आप गाइडलाइन विजिट करके फर्दर डिटेल्ड जो आपके मानदंड हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो उसको देख सकते हैं। हम आगे बात करते हैं, अगर हम ग्रुप कैटेगरी की बात करते हैं, समूह श्रेणी की बात करते हैं, तो जो FPO हैं उनको क्रेडिट लिंक, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए क्रेडिट लिंक अनुदान है, वो 35% का है। दूसरा उनको ट्रेनिंग सपोर्ट है, ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण सहायता जो हम बात करते हैं, ट्रेनिंग सपोर्ट का उनको बेनिफिट ले सकते हैं वो। मैक्सिमम लिमिट जो ग्रांट की वुड बी एज द प्रेस्क्राइब, वो प्रेस्क्राइब की हुई है जो लिमिट मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। तो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन उनका 35% तक का क्रेडिट लिंक ग्रांट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं। हम बात करते हैं अगर प्रोड्यूसर, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव, इनको एंटायर वैल्यू चेन के लिए भी हेल्प की गई है, जैसे कि सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, असेइंग, स्टोरेज वगैरह, कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटी के लिए भी, या लेबोरेटरी वगैरह के लिए भी उनको सपोर्ट है कॉमन लेवल पे, तो जिसमें वो अपना एप्लीकेशन डाल के अपना ये आवेदन कर सकते हैं। इन सब का ऑनलाइन एप्लीकेशन है हमारी वेबसाइट pmfme.mospi.gov.in पे। आगे बात करते हैं हम सीड कैपिटल, जो आपकी समूह श्रेणी है, सीड कैपिटल की SHG की बात करते हैं, तो उसके अंदर 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी दी जा रही है सरकार की तरफ से। ये आपकी SRLM के थ्रू दी जाएगी, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, और NULM जो आपके नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, तो इसके थ्रू सब्सिडी आपको दी जा रही है। जो एप्लीकेंट हैं आपके सीड कैपिटल के लिए, जो भी आवेदन करना चाह रहे हैं, उनके जो छोटे स्मॉल टूल्स हैं, वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए, जो 40,000 का 40,000 रुपए तक का उनको सीड कैपिटल मिल रहा है। दूसरा SHG मेंबर, अगर वो इंडिविजुअली कोई SHG मेंबर चाहता है कि वो अपना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप करनी है उनको, या उनको अपना छोटा यूनिट लगाना है, तो उनको क्रेडिट लिंक ग्रांट है 35% का, अधिकतम 10 लाख तक जिसकी लिमिट हो सकती है, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा आपका ट्रेनिंग एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट की बात करते हैं। ट्रेनिंग एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट के अंदर उनको बेसिकली ट्रेंड जो आपके स्टेट SRLM के थ्रू में प्रेजेंट है, उनके थ्रू को ट्रेनिंग दी जाएगी एप्लीकेंट को, SHG मेंबर्स को, आपने अलग अलग प्रोसेसिंग एस्पेक्ट्स के लिए और मशीनरी ऑपरेशन, अलग अलग टेक्निकल ट्रेनिंग ODOP के अंदर भी प्रोवाइड की जाएंगी। उनको सपोर्ट दिया जाएगा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए, पूरा प्रॉपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाएगा उनको आवेदन करने के लिए। तो सारा सपोर्ट आपका SHG को मिल रहा है। फर्दर आप बात करते हैं डिटेल गाइडलाइन की, तो डिटेल गाइडलाइन आप देखते हैं, उसमें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो क्या क्या अलग डिफरेंट कंपोनेंट है, वो आप डिटेल में गाइडलाइन में देख सकते हैं। हम आगे बात करते हैं कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली एक कॉमन एक ग्रुप कैटेगरी के लिए आवेदन कर, कोई FPO है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको अगर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवेदन करना है, तो उसमें
वो आवेदन कर सकते हैं। ये बेसिकली कोई FPO SSG या कोई गवर्नमेंट एजेंसी या प्राइवेट एंटरप्राइज उसको आवेदन कर सकती हैं। और इसके अंदर वो जो हायरिंग बेसिस पे यूटिलाइज होगा कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हायरिंग बेसिस पे यूटिलाइज किया जाएगा और इसको ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी यूज किया जाएगा डिफरेंट लेवल पे। इसके लिए क्रेडिट ग्रांट 35% का क्रेडिट ग्रांट है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द गाइडलाइन। अगर बात करते हैं हम आगे टाइप ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन कौन से वो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो स्कीम के अंदर फंडिंग है जिनको, वो आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को करने के लिए, सॉर्टिंग ग्रेडिंग करने के लिए वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फार्म गेट, कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटी ODOP के लिए, इंक्यूबेशन सेंटर्स जो अलग अलग हायरिंग बेसिस पे चलेंगे, इन सब के लिए वो आवेदन कर सकती है ग्रुप कैटेगरी। हम आगे बात करते हैं मार्केटिंग और ब्रांडिंग सपोर्ट की, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती होती है एक लेवल पे ग्रुप कैटेगरी को अपना सेल करने के लिए। तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग सपोर्ट ओनली प्रोवाइडेड टू FPO ग्रुप कैटेगरी, FPO SSG कोऑपरेटिव और SPV जो कि स्पेशल पर्पस व्हीकल है माइक्रो एंटरप्राइजेस का, उनको दिया जा रहा है। तो 50% तक का इसमें आपका है, टोटल जितना मार्केटिंग ब्रांडिंग का जो कॉस्ट होगा उसका 50% तक का सपोर्ट है सरकार की तरफ से। एलिजिबल आइटम क्या होंगे, ट्रेनिंग रिलेटेड टू मार्केटिंग, जो जितनी भी मार्केटिंग की ट्रेनिंग होगी वो फुल्ली फंडेड है, स्कीम के अंदर मिलेंगी आपको। कॉमन ब्रांड और पैकेजिंग बनाया जाएगा, उनका स्टैंडर्डाइज किया जाएगा और कॉमन पैकेजिंग करके वो सेल किया जाएगा रीजनल लेवल पे। मार्केटिंग टाइप कराए जाएंगे नेशनल और रीजनल रिटेल चेन्स के साथ, जिससे कि स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन के साथ, जिससे कि अपने ग्रुप कैटेगरी जो है अपना जो प्रोडक्शन है उसको वो सेल कर सकें एक अलग टाइप के साथ। क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करने के लिए, डिफरेंट स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएंगी, अलग अलग सहायता दी जाएंगी, जिससे वो अपना क्वालिटी प्रोडक्ट को एक रीजनल लेवल पे वो उसको प्लेस कर सकें। हम आगे बात करते हैं इस स्कीम का मेन कंपोनेंट जो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च। जो कैपेसिटी बिल्डिंग अलग अलग स्टेक होल्डर जो हमारे स्कीम के अंदर है, माइक्रो यूनिट है चाहे वो ग्रुप कैटेगरी है, उनको सहायता बेसिकली इनकी क्षमता निर्माण करना इस कैपेसिटी बिल्डिंग में का उद्देश्य है। क्रिटिकल कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर बात करते हैं तो ट्रेनिंग जो है ये क्रिटिकल कंपोनेंट है टेक्निकल अपग्रेडेशन का, क्योंकि बहुत सारी जितनी भी माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं या फिर फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, उनको टेक्निकली नॉलेज अभी नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको कठिनाइयां सामना करना पड़ता है और वो फॉर्मलाइज वे में काम। तो इसकी इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग का मेन उद्देश्य है उनको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको अलग अलग लेवल मार्केटिंग ब्रांडिंग रिलेटेड ट्रेनिंग देना। तो वो जिससे ODOP रिलेटेड टेक्निकल ट्रेनिंग देना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के लिए ट्रेनिंग देना, इस कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर आता है। नेशनल लेवल पे नेशनल NIFTM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट एंड IFPT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, इस में पाइवटल रोल है इनका, जो अहम रोल महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा रहे हैं। तो बात करते हैं तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के अंदर NIFTM और IFPT जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर्स के थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर को, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन को ट्रेन किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में आपके बेनिफिशियरी जो है एप्लीकेंट स्कीम के अंदर उनको सहायता देंगे। फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कोरिकुलम, अलग अलग कोरिकुलम बनाए जा रहे हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए जा रहे हैं बेनिफिशियरी के लिए, जो कि स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ मिलके अलग अलग ट्रेनिंग मटेरियल बनाए जा रहे हैं, जो कि बेनिफिशियरी को हेल्प करेंगे छोटे लेवल पे, जो उनको ट्रेनिंग के लिए उनको यूज किए जाएंगे। ट्रेनर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो आगे जाके बेनिफिशियरी को ट्रेनिंग करें। आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग होगी, मशीन रिलेटेड ट्रेनिंग होगी, अलग अलग ट्रेनिंग का इसमें सपोर्ट है स्कीम के अंदर। DPR बनाने के लिए भी इसमें सहायता, अलग अलग प्रोडक्ट की DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए भी स्कीम के अंदर सहायता है, क्योंकि जो DPR बनाने के लिए आपका जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हमने हर एक जिले में अपॉइंट किए हैं, जो एप्लीकेंट को एप्लीकेशन भरने में कठिनाइयां हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने में कठिनाइयां, तो वो अपने DRP के थ्रू एप्लीकेशन अपनी फिल करवा के अपना आगे आवेदन कर सकते हैं। फर्दर वो आपका DRP आपके पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भराने से लेकर आपके लोन अप्रूवल के पूरा रजिस्ट्रेशन तक आपकी सहायता करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ टेक्नोलॉजी, मशीन अपग्रेडेशन, माइक्रो यूनिट के लिए सेल्फ टेक्नोलॉजी वगैरह बनाई जा रही है। स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप में NIFTM और IFPT कर रहे हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ भी पार्टनरशिप की गई है, जिसकी वजह से जो आगे आने वाले पे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे भी काम किया जाए और अलग अलग ट्रेनिंग्स उनकी रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग दी जाए। स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की स्कीम रिक्वायरमेंट जो भी है उनकी प्रॉपर डिलीवरी हो सके, उसके लिए भी उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को। आगे हम बात करते हैं
एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें फोकस एरियाज क्या हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के? फोकस एरियाज जो है जो आपके हमने बेनिफिशियरी को टारगेट किया है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उनकी एसेंशियल एंटरप्राइज के फंक्शंस, मार्केटिंग, बुक कीपिंग, रजिस्ट्रेशन, एफएसआई के स्टैंडर्ड, अलग अलग जीएसटी, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, हाइजीन, इन सब की ट्रेनिंग सहायता हम कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर हम दे रहे हैं एप्लीकेंट को, जो आपके इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइज है या फिर ग्रुप कैटेगरी है, उनको इसकी सहायता है जिससे कि उनको पूरा ज्ञान मिल सके एक यूनिट को सेटअप करने के लिए। स्पेसिफिक ट्रेनिंग ओडीओपी के लिए डिजाइन की गई है जो कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स हैं, वो भी इस योजना के अंतर्गत आपके आवेदक जो भी आपके बेनिफिशियरी हैं उनको दी जाएंगी। अलग अलग मशीन्स के लिए, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के लिए, पैकेजिंग के लिए ट्रेनिंग्स हैं, स्टोरेज प्रोक्योरमेंट के लिए, अलग अलग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी ट्रेनिंग का इसमें प्रोविजन है जो एप्लीकेंट ले सकते हैं इस स्कीम के अंदर। अगर हम बात करते हैं रिसोर्स पर्सन की, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हर एक जिला स्तर पर अपॉइंट किए गए हैं जिनका काम जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना है अपने माइक्रो एंटरप्राइजेस को या ग्रुप कैटेगरी को, वो उनकी डीपीआर बनवाने में बैंक लोन, गेटिंग बैंक लोन लेने, ट्रेनिंग वगैरह, उनकी अपग्रेडेशन, यूनिट को अपग्रेड करने में उनकी सहायता करेंगे, एप्लीकेंट की सहायता करेंगे। दूसरा, ये स्टेट को अपना क्लस्टर स्टडी प्रोवाइड करेंगे, अपने एरिया का जोन का स्टडी करके ऑडियो पे रिलेटेड, और ग्रुप की स्टडी करके डेटा देंगे स्टेट के यूनिट्स को। उसके बाद डीआरपी का काम, दूसरा काम ये भी है कि वो आइडेंटिफाई करेंगे एप्लीकेंट को जो कि सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं, छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, और उनका डेटा आपके स्टेट को दिया जाएगा जिससे कि वो उनको आइडेंटिफाई करके उनको मैक्सिमम सपोर्ट ये स्कीम के थ्रू मिल सके। इसका कुछ प्रोसेस की बात करते हैं तो इंटरेस्टेड जो भी यूनिट्स हैं वो पहले ऑनलाइन आवेदन करते हैं और डीआरपी के थ्रू असिस्टेंस लेंगे और एप्लीकेशन अपना ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद स्कीम ये जो आपकी एप्लीकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीआरपी के पास जाती है। डीआरपी उसकी स्क्रूटनी करते हैं, स्क्रूटनी का मतलब पूरी एप्लीकेशन आपकी वेरीफाई होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद अगर वो रिकमेंड करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास वो एप्लीकेशन जाती है जो फाइनल डिसीजन लेती है एप्लीकेंट की एप्लीकेशन के ऊपर। वो सारी चीज़ वेरीफाई करने के बाद सारा डॉक्यूमेंट वगैरह, आपकी डिटेल, आपकी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी है या नहीं है, वो सारी चीज़ वेरीफाई करने के बाद वो एप्लीकेशन बैंक को रिकमेंड हो जाती है जो एप्लीकेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करके देते हैं। वो बैंक के थ्रू ऑनलाइन ही, ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, ये सारा ऑनलाइन ही फॉरवर्ड हो जाती है एप्लीकेंट से लेके अपने बैंक तक। फिर उसमें बैंक अपना अपना काम स्टार्ट करते हैं लोन सैंक्शनिंग का। ये आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, निफ्टम साइट है जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग के सारे कंपोनेंट जो भी हमने कंटेंट डेवलप किया है, अलग अलग ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर हमने डिफरेंट, निफ्टम ने और आईएफपीटी ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फोरकास्टेड प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाए हुए हैं, प्रोसेसिंग रिलेटेड वीडियो है, रीडिंग मटेरियल है, प्रेजेंटेशंस हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स पे जो आप एप्लीकेंट अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं और आप उससे सहायता ले सकते हैं कि प्रोजेक्ट प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है या कैसे उनको बनाना है। तो हमने ये हम टाइम टू टाइम अलग अलग प्रोडक्ट पे उसमें अपडेट करते हैं। तो अब ये वेबसाइट है www.niftam.ac.in, इस पे आप विजिट करके कैपेसिटी बिल्डिंग कंटेंट को पूरा देख सकते हैं और उससे आवेदन करने वाले जो भी बेनिफिशियरी हैं वो उसमें सहायता ले सकते हैं कि कैसे अपने प्लांट में अलग अलग चीज़ों को, क्वालिटी पैरामीटर्स को, पैकेजिंग पैरामीटर्स को, रॉ मटेरियल पैरामीटर्स को, स्टोरेज पैरामीटर्स को, अलग अलग पैरामीटर्स से रिलेटेड आप इसमें वीडियो देख सकते हैं, डीपीआर देख सकते हैं और रीडिंग मटेरियल देख सकते हैं जिससे कि बेनिफिशियरी को उसमें सहायता ले सकते हैं। फर्दर आप हमारी हेल्पलाइन है 013022811089, इस हेल्पलाइन पे आप ये 7 दिन वर्किंग है, सप्ताह में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। 9 to 7 ये वर्किंग होती है, 9 AM to 7 PM। तो कोई भी बेनिफिशियरी जिनको किसी भी तरह की समस्या आती है, किसी भी तरह की सहायता उनको रिक्वायर्ड होती है, तो ये हमारा नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं और हमसे अलग किसी भी टाइप की सहायता आप ले सकते हैं जो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिस भी तरह। दूसरा हमारा मेल आईडी है pfmecell@niftam.ac, इस पे अपनी क्वेरीज आप डाल सकते हैं, हम इसको आपको रिवर्ट बैक करेंगे। फर्दर जो भी आपकी समस्या आप दे सकते हैं। अभी ग्रुप कैटेगरी और इंडिविजुअल एप्लीकेशंस ऑनलाइन हो चुके हैं, तो आप आवेदन, एप्लीकेंट जो भी आवेदक हैं वो अपना ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। और डीआरपी का हमने कंटेंट, जो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करी हुई है, अगर डीआरपी का कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं और उनको कॉन्टैक्ट करके आप उनमें हेल्प ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्रेजेंटेशन हमारा खत्म होता है, अगर किसी का कोई डाउट है तो वो अपना पूछ सकते हैं। Thank you very much, Vikrant Rana साहब।
हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज हमारे साथ राहुल ठाकरे साहब भी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ राहुल जी को कि प्लीज कुछ शब्द, कुछ व्यूज अपने भी बताइए पीएम से। राहुल जी। सर की जो स्लाइड्स है ना, उसके 5 कंपोनेंट दिए हैं, सिर्फ स्लाइड ओपन करके चलते हैं। उनकी है फर्स्ट 5 ठीक है। ठीक है। Good morning to all. My name is Rahul Thakre from Maharashtra, Akola. मैं इस आज का जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का मोदी के थ्रू हमने जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस को अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो भी माइक्रो एंटरप्राइजेस है उसको फॉर्मलाइज करने के लिए हमने जो आज वेबिनार कम सेमिनार रखा है, उस प्रोग्राम का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जो आज डिग्निटरी हमें अलग अलग विषयों पर, अलग अलग चीजों पर जिन्होंने हमें गाइडेंस किया है, गाइडलाइन दिया है, मार्गदर्शन किया है, उसी को थोड़ा सादे और सीरियस, मैंने थोड़ा मराठी साइड से हो इसलिए हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, बेसिकली महाराष्ट्र से होने की वजह से। वो चीज को सरल और सीधे इसमें कैसा किया जाए उसमें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी पीपीटी प्रेजेंटेशन सब हुआ है, आपने सुना है, आपको कंटिन्यू 2 आवर से आप सुन रहे हैं कि माइक्रो एंटरप्राइजेस में क्या करना है, क्या हो सकता है, उसके लिए क्या क्या चीज जरूरी है, ये सब चीज आपने सुनते आए हैं। और ऑलरेडी मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सब माइक्रो एंटरप्रेन्योर है, जो खुद का ओन बिजनेस यहाँ पर रन करते हैं। इसलिए ही इतना राजकोट में से सिलेक्टेड 50 लोग बुलाए, है ना। सो आप ऑलरेडी माइक्रो एंटरप्राइजेस खुद के इसमें हो, सिर्फ उसे अनऑर्गेनाइज में है, उसे फॉर्मलाइज करने की हमारी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी अभी एज ए एसपीएमयू करके अभय उदय ग्रुप ने पूरा गुजरात स्टेट के लिए लिया है। उसमें से हमने जो आज राजकोट में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उस प्रोग्राम के थ्रू हमें आगे कंटिन्यू 4 ईयर 5 इयर्स का जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा, उस प्रोजेक्ट का टोटल बेनिफिट्स हमें कैसा लिया जाए, उसके लिए बहुत सी टेक्निकल चीजें हमें यहाँ पर बताई गई है। उसमें से आपको 50% 40% कुछ अंडरस्टैंड हुआ होगा, बाकी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस करेंगे, बाद में जाएंगे, फिर पता चलेगा कुछ इजी लगा, कुछ लगा कि वहां पर ऑप्शंस में हमें गड़बड़ आ रही है, देवान सर से कांटेक्ट करेंगे। ऑलरेडी नॉलेज मैनेजमेंट के लिए हमारे पास केसीसी का सपोर्ट्स है और हमें ऑलरेडी ट्रेनिंग सेंटर भी अवेलेबल दिए। तो ये सब चीज को सरल और सादे भाषा में कैसा किया जाए, बेसिकली देखा जाए से हमें 4 से 5 प्रकार की समस्या इसमें आ सकती है, और उस समस्या को हमें हमारा बिजनेस खुद का रन करने के लिए इजी वे में जाना है। तो एक मोटा मोटी देखा जाए गुजरात स्टेट के लिए, तो इससे पहले कोई तो एजेंसी था जो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस पे काम कर रहा था, कोई तो एजेंसी था जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए काम कर रहा था, कोई तो एक गवर्नमेंट एजेंसी था जो हमें संगठित करने के लिए काम कर रहा था। और उसी चीज को लेके आज हम बिजनेस डेवलपमेंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो उसी माइक्रो एंटरप्राइजेस को हम फॉर्मलाइजेशन की व्यू में जब बात कर रहे हैं, उसे बिजनेस रूप में देना है। और वो बिजनेस छोटा नहीं है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमें लाना है कि हमारे जिले की जो खासियत है, उस जिले की खासियत को हमें जो भी माइक्रो एंटरप्राइजेस है उनको मर्ज करना है और हमारा एक ब्रांड डेवलप करना है। तो थ्रू वो सब बिजनेस डेवलप करने के लिए हमें सपोर्ट कौन करने वाला है, तो अभी हमारे पास एक स्कीम आया है प्रधानमंत्री मोदी जी का, इसमें फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस का, और उसमें एज अ एसपीएमयू करके जो प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है,
उसे मुझे टोटल गुजरात डिस्ट्रिक्ट में करना है, और उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट में एज ए डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन करके रहेगा। लेकिन वो चीज अभी हमको करना है, तो हमारा जो बेसिक नॉलेज है उसके लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी का ट्रेनिंग होना है, उसका टेक्निकल हम जो बनाते हैं, हमारा होम जो ओन थेरेपी होगा, उसका ओन होममेड हमारा जो भी प्रैक्टिस चल रहे होंगे, उसे हमें, वो भी अनऑर्गेनाइज है, उसे भी ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। जो डिमांड है, जो पीएम मोदी का सपना था, वोकल से लोकल टू वोकल बनाना है, अभी हम ऐसा मानते हैं कि हम लोकल से थोड़े बहुत ऊपर है, क्योंकि हम माइक्रो एंटरप्राइजेस में है। अब उस लोकल चीज को हमें वोकल बनाने के लिए भी कुछ टेक्निकल जरूरत लगेगी। तो हमारे पास अलग अलग डिफरेंट पैरामीटर्स है, कोई एकदम वोकल में नहीं जा सकता है, उससे लोकल, उसके बाद में और धीरे धीरे जाना है। तो स्टार्टिंग हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से रखा है कि 10 लोगों का जब संगठन रहता है, जहाँ पे अभी एनआरएलएम ने काम किया होगा या एसआरएलएम जिसे बोलते हैं, उन्होंने काम किया है। एक डेटा देख रहा था तो गुजरात स्टेट का मुझे डेटा दिखा गया है कि लगभग 10 साल से 4000 सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पर अभी तक बने हैं, और उस 4000 सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम एक्टिव का रेशियो देखेंगे तो 60 to 70% सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो एक्टिव में दिख रहे हैं। बाकी के 20 to 30% जो डिफंक्ट में है या नॉन एक्टिव है, हम उसको बोलेंगे अनऑर्गेनाइज है। उसे ऑर्गेनाइज में हमें कंडक्ट करना है। यदि ये सब चीज हमें ऑर्गेनाइज में कंडक्ट करना है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाना पड़ेगा, उन्हें डेली रूटीन में लाना पड़ेगा, उनके जो मीटिंग्स रहते हैं मीटिंग्स में लाना पड़ेगा, और ये सब में आएंगे तो वो बिजनेस प्रपोजल के लाइवलीहुड एनहांसमेंट में सोचेंगे। उसी तरह से हम जो हमारे इंडिविजुअल लेवल के बिजनेस करते हैं, अभी यहाँ पर जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है, मैक्सिमम इंडिविजुअल लेवल के माइक्रो एंटरप्राइजेस है। ऐसा कुछ बड़ा ग्रुप नहीं है कि जो हम 10 लोग मिलके यहाँ पर आए हैं और हमारा खुद का एक माइक्रो एंटरप्राइजेस है। सब इंडिविजुअल लेवल पे, और इंडिविजुअल लेवल पे करना है तो उसके लिए बजट पार्ट जो प्रोविजन रहता है वो थोड़ा कम रहता है, और हम सोचते हैं कि जिले का जब हमारा संगठन किया जाए तो एक बड़ा हुआ जाए। तो यहाँ पर के जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए मुझे अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ का पेरीफेरी अभी घुमा नहीं हूँ। लेकिन जैसा बताया गया है कि आज राजकोट के लिए ग्राउंड नट पे काम करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड नट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और ग्राउंड नट के बारे में कुछ बाय प्रोडक्ट बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी टेक्निकल्स है, वो आपको बताएंगे। मेरा यही कहना है कि मैं 10 साल से यही सेक्टर में काम कर रहा हूँ, और ये काम करते वक्त मैं जो देख रहा हूँ, मैं महिला संगठनों से जुड़ा हूँ, मैं सीबीओ से जुड़ा हूँ, मैं फार्मर ग्रुप से जुड़ा हूँ, और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ। हम जब कोई प्रपोजल बनाना चाहते हैं तब हम देखते हैं कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की क्या जरूरत है, हमें जो मीटिंग्स के लिए जो लगते हैं फॉर्मूले, हेरा और रेजुलेशन, वो दे देते हैं, डॉक्यूमेंट देते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर ग्रुप को या पर्टिकुलर मेंबर्स को, सबको जब खुद का जब चीज चलता है तो हम उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट या झोंक देते हैं। वैसा ग्रुप का जब चलता है तो अध्यक्ष, सचिव या तो उसका चेयरमैन या सेक्रेटरी ये इन्वॉल्व होते हैं। कहना यह है कि ये स्कीम बहुत ही सुंदर आई है, और हर एक कंपोनेंट के लिए हमें फंडिंग है। हर एक चीज में इतना बड़ा 90% फंडिंग कोई नहीं देगा, कोई भी प्रपोजल में कोई नहीं देगा, ओनली 10% कंट्रीब्यूशन हमें इसमें देना है। इसके लिए हमारे जो डीआरपीज रहेंगे उनसे आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है। यदि वहां पर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तो एसपीएमयू यूनिट है, या उसके लिए और हम डिजाइन करेंगे कैसे आपके तक रीच आउट हो सकते हैं, आपसे कैसे बार बार मीटिंग कर सकते हैं। पर्टिकुलर आप नहीं, हम राजकोट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे चीज में हमें एक ही चीज ध्यान में रखना है कि अभी हमने टारगेट रख दिया कि मुझे एक बिजनेस लेके जाना है, तो उस बिजनेस को हम मैक्सिमम 10 लाख तक, उससे बड़ा भी करना है तो उससे भी बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए जो 90% सपोर्ट मिल रहा है ये कहीं पे मिलेगा नहीं, तो उसे स्ट्रेट फॉरवर्डली वो वैसे सोचा जाए कि हमें यदि कुछ करना है तो अभी इसमें जुड़ने की जरूरत है। इजी ऑन गोइंग में यदि सोचोगे तो प्रॉपर होगा नहीं। मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे अभी हंसराज जी बोल के गए कि उनके भाषा में गुजराती में बोल रहे थे, मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था कि हमें ये करना है, सब हमारे लिए आया है, बहुत सी अभी तक स्कीम आ गई है, हम लेकिन उसमें ध्यान नहीं देते। हमें ध्यान दिए तो डेफिनेटली उसका सपोर्ट होता है। ऐसे प्लेटफॉर्म आते रहते हैं, ऐसे सोशल मीडिया या ऑनलाइन पे जहाँ पर जो प्रोसेस दिया जाता है उसको सब देखिए, और जहां जहां पर ट्रेनिंग और सेमिनार हमारे लगेंगे उस पर टोटली पार्टिसिपेट कीजिए, और हमारे स्कीम का जो है पूरे हम आप उसमें फायदा लीजिए, और नेक्स्ट जहां जहां पर प्लेटफॉर्म पे हमें संग मिलेगी हम डेफिनेटली। थैंक यू।
यू वेरी मच सर। स्पीकर हमारे आज हमारे साथ है मिस्टर रौनक चटवानी। ये आपको ओडीओपी के बारे में है थोड़ी जानकारी देंगे। रिक्वेस्ट करता हूँ रौनक जी प्लीज। હાલો અત્રે ઉપસ્થિત સર્વે મહેમાનો અને વર્ચ્યુઅલી જે બધા ઉપસ્થિત છે સર્વે મહેમાનોનો શુભ સવાર। મારું નામ છે રોનક ચટવાણી, હું સૌરાષ્ટ્રથી જ બિલોંગ કરું છું અને હું અત્યારે આપ સૌને આપણે માંડવી એટલે કે સિંગદાણામાંથી બીજું શું શું બની શકે છે નાના લેવલ ઉપર અથવા તો તમે કોઈ પોટેશ કે ઇન્ડસ્ટ્રી નાખવી હોય એના માટે શું જોઈએ છે, કેટલી મશીનરીનું કોસ્ટ આવે છે, કેટલી જગ્યા જોઈએ છે, એ બધા વિશે તમને હું વિવરણ કરીશ। તો જેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે માંડવી ઓડીઓપી અંતર્ગત રાજકોટ, જામનગર, દ્વારકા અને અમરેલીમાં આવેલા છે અને આપણે ખાલી ગુજરાતનું જોવા જઈએ તો માંડવીનું આપણે છેલ્લા 3 વર્ષનું એવરેજ લઈએ તો દર હેક્ટરે આપણે 2000 કિલો માંડવી જેટલું આવે છે। હવે આપણે જેટલી માંડવી થાય છે અને આખા ભારતમાં જેટલી માંડવી થાય છે એમાંથી ઘણી બધી માંડવી આપણે એક્સપોર્ટ કરી છે। એમાંથી મોર ધેન 50% એટલે કે 58% જેટલી માત્ર ખાલી ગુજરાતમાંથી એક્સપોર્ટ થાય છે। ગુજરાતમાં આપણે 20 લાખ દર વર્ષે આપણે 20 લાખ ટન જેટલું માંડવીનું ઉત્પાદન લઈએ છીએ અને એ બીજા નંબર ઉપર આવે છે ઉત્પાદનમાં। પહેલા નંબર પર ઉત્પાદનમાં આપણે ચાઇના આવે છે। હવે આપણે અહીંથી એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ અથવા તો કોઈ બી બીજી વસ્તુ બને છે માંડવી તેમાંથી 90% જે માંડવી હોય છે દાણા તરીકે જ વપરાય છે। એ લોકો ઘર માટે દાણા વાપરતા હોય અથવા તો હોલસેલમાં વેચતા હોય અથવા તો એક્સપોર્ટમાં જતી હોય, બધી વસ્તુ દાણા માટે જ વપરાય છે અને એમાંથી માત્ર ને માત્ર 12% છે જે છે એ વસ્તુ એક પ્રોસેસિંગમાં જાય છે। હવે આપણે માંડવીમાંથી શું શું બની શકે છે? માંડવીમાંથી આપણે રિફાઇનરી તેલ તો તમે જે સાંભળો જ છો, પણ હવે આ કોરોના આવ્યા પછી લોકો રિફાઇનરી કરતા કોલ્ડ પ્રેસ તમે કદાચ સાંભળેલું હોય તો કોલ્ડ પ્રેસ તેલનો વધારે ઉપયોગ કરવા ઈચ્છે છે। પછી ઘણા એવા સ્નેક્સ આવે છે। સૌથી પહેલા તમે બાલાજીમાં ખાધેલા હશે સિંગ ભજીયા આવતા હતા। હવે સિંગ ભજીયાનો બીજો મોટો ભાઈ આવ્યો છે ને હેલ્ધી ભાઈ આવ્યો છે કટક બટક કરીને। તો શું ફેર છે? બે વસ્તુ એક જ છે, ખાલી સિંગ ભજીયા તળેલા હોય છે અને કટક બટક ઓવનમાં રોસ્ટ કરેલા હોય છે એટલે એમાં તેલનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે, લોકો વધારે ખાય છે। ત્યારબાદ બેકરીમાં આપણે માંડવીનો ઉપયોગ કરીને ઘણી કુકીઝ ને એવું બનાવી શકીએ છીએ। પછી પીનટ બટર અત્યારે બહુ ચાલે છે ક્રેઝમાં, કારણ કે વિગન બટર છે, લોકો તેજી રહ્યા છે ડેરી ઉત્પાદનોને। તે પછી આપણે બાર બનાવી શકીએ, ચોકલેટ કોટેડ આપણે માંડવી બાર આવે છે, ચીકી બનાવી શકીએ છીએ। હવે આ આપણે નાના એમથા સ્કેલ ઉપર ઊભું કરવું હોય આ બધી વસ્તુનું તો કેટલું પ્રોજેક્ટનું કોસ્ટ આવે અથવા તો કેટલી જમીન જોઈએ એની આ વિગત છે। હવે સપોઝ કે કોઈને નાનાપણથી જ કરવું હોય તો તમે કહી શકો કેટલી કોસ્ટ આવે અથવા તો કેટલી જગ્યા જોઈએ? કોઈને પહેલેથી જ કરવું હોય ને સૌથી નાના સ્કેલ ઉપર કરવું હોય તો કેટલી કોસ્ટ આવી શકે? યસ, મશીનરી નામ તો જોઈએ તો 2-3 લાખ અરાઉન્ડ તો સ્ટાર્ટિંગ બેઝ તો હોય છે, હા પછીથી બધું સ્ટાર્ટ થાય ધીરે ધીરે, પોસિબિલિટી નથી। ઓકે, હું એમ કહું કે જો 0 રૂપિયા થઈ શકે તમે તમારી પ્રોડક્ટ ઘરે જ બનાવી, ધારો કે પીનટ બટર જ છે તો સર્વેના ઘરે એક નાનું મિક્સર ને એવું હોય છે, એક ગેસ ને ચૂલો એવું હોય છે, તો પીનટ બટર કઈ રીતના બને છે? સપોઝ કે આપણે માંડવી લઈએ છીએ, છોલીએ છીએ અને રોસ્ટ કરીએ છીએ,
ને થોડુંક એમાં તેલ નાખીને મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી દઈએ છીએ ને પછી એમાં જે ખાંડ ને બધી અમુક કેમિકલ્સ જતા હોય ધારો કે ઇમલ્સિફાયર જાય છે તો એ મિક્સ કરીને આપણે જાર આપણને માર્કેટમાં મળે છે જારમાં આપણે હાથેથી ભરી શકીએ છીએ તો એના માટે કોઈ તમને મશીનરી લેવાની જરૂરત ખરી એના માટે કોઈ તમારે જગ્યા અલગથી લેવાની જરૂર ખરી તો આ બધી વસ્તુ હવે સપોઝ કે તમે એવું વિચારશો કે ભાઈ પીનટ બટર અમે ઘરે બનાવીને વેચીએ તો અમારી સાથે સામે માર્કેટમાં કેટલા બધા કંપની લઈને બેઠા છે મોટી મોટી ને સારી પ્રોડક્ટ્સ વેચે છે અને લોકોને ભરોસો છે એમના ઉપર તો તમારે કઈ રીતના વેચવું તો તમારે વેચવા માટે હવે કોરોનાએ લોકોની વિચારસરણીમાં ખાવા પ્રત્યે બહુ મોટા ચેન્જ લાવે છે લોકો હેલ્ધી તરફ જઈ રહ્યા છે હવે પીનટ બટર તમે માર્કેટમાં જોશો તો પીનટ બટર તમને સોલ્ટી મળશે ક્રન્ચી મળશે સ્વીટન મળશે અનસ્વીટન મળશે તો શુગર ફ્રી વાળું નહીં જોવા મળે અથવા જોવા મળશે તો એક જ બ્રાન્ડ છે માય ફિટનેસ કરીને શુગર ફ્રી માટે ખાલી બનાવે છે હવે તમે એ જ પીનટ બટર તમે ઘરે ખાંડ વગરનો ઉપયોગ કરી ખાંડ નાખવા કરતા તમે શુગર ફ્રી પાવડર નાખો અથવા શુગર ફ્રી પાવડર કોઈને ન સમજે તો સ્ટીવિયા બી નાખી શકો છો જે નેચરલ સ્વીટનર આવે છે તો એ તમારે પ્રોડક્ટ અત્યારે તમે માંડવીના દાણા લેવા જાઓ માર્કેટમાં કદાચ હોલસેલ ભાવે ના લો તો 100 રૂપિયા 150 રૂપિયા સુધી જાય છે હવે એમાં થોડુંક તમે એડ કરીને પીનટ બટર બનાવો તો 150 થી 200 રૂપિયા જાય એ પીનટ બટર તમે ખાંડ નાખીને બનાવો તો 350 થી 400 રૂપિયા કિલો જાય એ જ પીનટ બટરમાં તમે સ્ટીવિયા અથવા તો સુક્રાલોસ પાવડર જે આવે છે એ નાખીને શુગર ફ્રી નો લેબલ બનાવીને વેચો તો લોકોની પસંદગી બી વધશે અને એ જ વસ્તુ તમે 550 સુધીમાં બી વેચી શકશો નફો બી વધે છે લોકોની એક્સેપ્ટેબિલિટી બી વધે છે હવે બીજી ઘણી એવી પ્રોડક્ટ્સ છે ધારો કે ખાલી માંડવીમાંથી જ નહીં કોઈ એવું છે કે ભાઈ જેમની પાસે માંડવી સાથે સાથે માંડવી છોડવાનું નહીં ભાઈ દાણાનું કામ કરે છે તો એમની પાસે કૂચો ને એવું બધું આપણે છાલ જે ગઈ છે બહુ વધે છે છાલ ઘણા ખોળમાં નાખતા હોય ઘણા કચરામાં નાખતા હોય તો છાલનું બી આપણે પાછળ તમે પાણીના કપ જોયા છે થર્મોકોલના સિંગલ યુઝ તો એ સિંગલ યુઝ ક્રોકરી તરીકે પણ ઉપયોગ થઈ શકે છે ઘણા લોકો છાલનો ઉપયોગ કરીને ક્રોકરીને એવું બનાવે છે ડીશ ને એવું બનાવે છે સિંગલ યુઝ એ વસ્તુ બી બની શકે છે પછી બેકરી પ્રોડક્ટ્સ તમે બનાવી શકો છો નાના સ્કેલ ઉપર ખાલી કોઈની પાસે ઓટીજી ઓવન હોય અથવા તો માઇક્રોવેવ હોય જે માત્ર 10 થી 12,000 નું આવે છે ખાલી બેકરી પ્રોડક્ટ્સમાં એક જ વસ્તુ મેઇન હોય છે જે છે ઓવન અને બીજું જે કઈ હોય તો એ તમારી પર કડા છે જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી અંતર્ગત ઘણા લોકો ઘણી યુનિવર્સિટીમાં એ લોકો બેકરીના કોર્सेस કરાવે છે મહિલા મંડળી માટે અને 4 થી 5 મહિનાના નાના જે બેકરી કોઈને ખોલવાની ગણતરી હોય એ માટે બી કરાય છે વગર કોઈ ફી લીધે તો તમે બેકરીનો કોર્સ ત્યાંથી શીખી શકો છો પછી તમારી ઉપર આવે છે કે તમે એમાં શું તમારી આર્ટ છે તમારી શું કળા છે તમે શું બુદ્ધિ વાપરીને વેચો છો લોકો અત્યારે માર્કેટમાં જે ઓલરેડી બ્રાન્ડેડ ને વસ્તુ મળે છે લોકો હવે ત્યાં જઈ રહ્યા છે કારણ કે લોકોને કંઈક અલગ જોઈએ છે કંઈક આર્ટિસિયન જોઈએ છે કંઈક ક્રાફ્ટ જોઈએ છે તમે માર્કેટમાં જોવા જાવ તો અત્યારે આર્ટિઝન અને ક્રાફ્ટ કરીને પ્રોડક્ટ્સ બહુ આવે છે સેમ જ વસ્તુ હોય છે બહુ નહિવત તફાવત હોય છે પણ છતાં એ વસ્તુ વધારે વેચાય છે લોકો એ લોકોને સોશિયલ મીડિયા ઉપર પણ એટલી ફોલોઈંગ્સ મળતી હોય છે બીજું આના કોઈ સિવાય તમે કહી શકો શું બની શકે માંડવીમાંથી શું હા પીનટ ચટણી બની શકે છે પછી ચોકલેટ સ્વીટ બની શકે છે હા મગફળીના ખોળ જે આપણને કેક વળે છે આપણે તેલ કાઢ્યા પછી એ ખોળ તરીકે વપરાય છે ને આપણે પણ ખાઈ શકીએ છીએ આપણે એ રીતના ખાતા નથી એ વસ્તુ અલગ છે કારણ કે આપણને એવું લાગે છે કચરો વૈધો જે છે છેલ્લે છે ખાચા ફાઈબર્સ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ છે ને જે પાછળ એમાં જ રહી જતા હોય છે ખોળમાં બીજું આના સિવાય કોઈ તમને વિચાર આવતો એવું પીનટ માંથી ચીક્કી ને એવું છે બારમાં આવી જાય આપણે પછી કોઈ માંડવીમાંથી માંડવી પાક પછી કોઈ આમ માંડવીમાંથી દૂધ સાંભળેલું છે પીનટ મિલ્ક મળે છે તો પીનટ મિલ્ક બી તમે ઘરે બનાવી શકો છો એમાં ખાલી કાંઈ નથી હોતું માંડવી હોય છે ને પાણી હોય છે અને ખાલી મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી નાખવાનું તો તમારું દૂધ બની જાય તો અત્યારે લોકો વિગન દૂધ તરફ બહુ જઈ રહ્યા છે સોફિટ કરીને એક બહુ કંપની છે સારી એ સોયા મિલ્ક બનાવે છે એમાં સોયા માત્ર ખાલી 10% જ હોય છે બાકી 90% પાણી જ હોય છે છતાં તમે લેવા જાવ તો એ બોક્સ કંઈક
180 રૂપિયાનું કંઈક લીટર આવે છે. માંડવી કતરી પીધા છે, પછી કાજુ કતરી કરીને જ વેચે છે લોકો. એટલે એ બી બનાવી શકો છો, કાજુ કતરી, માંડવી કતરી. પછી આ મિલ્ક બી ચાલે છે, એના તમે આના સિવાય તમે હેલ્ધી જે સ્પ્રાઉટ્સ ને એવું આવે છે એની સાથે આ માંડવી મિક્સ કરી થોડાક ધાણાભાજી નાખી લીંબુ નાખીને એવા રેસ્ટોરન્ટ્સમાં તમે સપ્લાય કરી શકો છો, સુપર માર્કેટ્સમાં સપ્લાય કરી શકો છો. બીજું કોઈ તમને મગજમાં એવું આવતું હોય, કોઈ ક્વેશ્ચન્સ? ખારી સિંગ જ વપરાય, બધા વપરાય. ખારી સિંગ, માંડવી ને શ્રાવણ આવે એટલે ખારી સિંગ નો સ્ટોક કરીને રાખવાનો. પ્લસમાં આપણે જુનાગઢમાં જ એક માંડવી સંશોધન કેન્દ્ર છે કે ત્યાં બહુ લોકો સંશોધન કરી રહ્યા છે કે આપણે ઓછી જમીનમાં વધારે પાક કઈ રીતના લઈ શકીએ. દર વર્ષે એ લોકો નવી વેરાયટી બહાર પાડે છે, એટલે માંડવીની ઓછી જગ્યામાં વધારે ઉત્પાદન પણ એ લોકો લઈ રહ્યા છે. તો દર વર્ષે માંડવીના ઉત્પાદનમાં વધારો થાય છે, તો ઉત્પાદન સાથે સાથે આપણે નવી પ્રોડક્ટ્સ પણ લાવી શકીએ છીએ. માર્કેટમાં ડિમાન્ડ છે અને લોકો સપ્લાય કરવા વાળા પણ છે. ગાઈડન્સ છે, માર્કેટિંગ છે. ગાઈડન્સ કરતા પણ માર્કેટિંગ છે. અત્યારે તમે સોશિયલ મીડિયાનો અઢળક ઉપયોગ લોકો કરે છે, અને અઢળક ઉપયોગ લોકો કરે છે આવી બધી આર્ટિસન પ્રોડક્ટ્સ માટે. ચોકલેટમાં તમે વધારે જોવા મળતું હશે કે ચોકલેટમાં લોકો બહુ બધી વેરાયટી લાવે છે. ચોકલેટનું ખાલી બાર લાવે છે, ઓગાળે છે, 2-4 વસ્તુ નાખે છે અને 100 રૂપિયા ચોકલેટ 400 રૂપિયામાં જાય છે. એટલે એવું આપણે માંડવીમાં બી થઈ શકે છે. માંડવીને આપણે 33 જિલ્લાની 24 પ્રોડક્ટ છે, 24 પ્રોડક્ટ્સમાં થઈ શકે છે. તો એવું તમે ક્યાંય જોઈ શકો છો, અથવા તો તમે એવી કોઈ તમને વિચાર આવતો હોય અથવા તો તમને કોઈ સહાયતા એવી જોતી હોય કોઈ પ્રોડક્ટ્સ બનાવવા માટે, તો અમે તત્પર રહીશું. વેચવા માટે માર્કેટિંગ બ્રાન્ડિંગ સપોર્ટ બી આવશું. બીજી કોઈ એમાં એવું છે કે તમે તમારું જૂનું યુનિટ છે, તમે ઓલરેડી કોઈ પ્રોસેસિંગમાં છો, ફૂડ પ્રોસેસિંગમાં, તો તમે બીજી કોઈ વસ્તુ તરફ જઈ શકો છો. અથવા પીનટની જગ્યાએ તમે ધાણા વાપરી શકો, કે બીજું કઈ બનાવી શકો, તો ઘઉંનું શું કહેવાય આપણે ખાખરાનું એવું કરી શકો. હવે તમારે પહેલેથી લઈને છેલ્લે સુધી બધી આખું નવું જ નાખવાનું છે, તમારે ફરજિયાતપણે માંડવીની પ્રોડક્શન બનાવવી પડશે. હા, થઈ શકે છે ને. તમે ઓલરેડી ફૂડમાં આમાં બે વસ્તુ આવે છે, એક જૂનું યુનિટ અને નવું યુનિટ. જૂનું યુનિટ હોય તો તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ બનાવી શકો છો, નવું યુનિટ હોય તમે ઓડિયો બી વસાવવું પડે. બીજી વસ્તુ એ છે કે આમાં અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર કીધેલું છે, એટલે કે જે યુનિટ હોય જે તે યુનિટ એમાં FFSI લાયસન્સ, ઉદ્યોગ આધાર, જીએસટી નંબર, આ 3 માંથી એક વસ્તુ ના આવવી જોઈએ. અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર તો જ કહેવાય. હા, ફરાળી ચેવડો, સાદો ચેવડો લેવા જાવ તો કેટલા નો પડે, ફરાળી ચેવડો લેવા જાવ તો કેટલા નો પડે. તફાવત ખાલી એટલો જ છે, તમે સાદો કઈને વેચો છો ને ફરાળી કઈને વેચો છો. ફરાળી જ છે. ફરાળી જ બનાવું છું, રાજગરાનો લોટ અને ધાણા બસ બે જ આવે. એટલે આવી બધી વસ્તુ તમે પણ વિચારી શકો છો. તમારી આજુબાજુ થઈ રહી હોય છે, તમને ઘરમાં બનાવતા હોય, તમને ખ્યાલ પણ ન હોય કે આનો યુઝ કરી, આનો ઉપયોગ કરીને હું નાનું એવું પોતાનું યુનિટ પણ ઊભું કરી શકું છું. સારું, થેન્ક યુ. Thank you very much, Ronakji, for this beautiful interactive presentation. रौनक जी अपने साथ अभी भी जुड़े हैं, और जिसको भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज आप पूछ सकते हैं. एनी अदर क्वेश्चन? हमारे साथ धवल सर भी है जुड़े हुए. yes. क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं. एक ने लिखा है मिस्टर जिगीशा, मैम जिगीशा ने लिखा है कि पीनट कर्ड एंड मिल्क आई एम मेकिंग. रौनक जी के लिए.
किसी को कोई क्वेश्चन? प्लीज अपना नाम बता के पूछिएगा। हेलो, मेरा नाम निमेश पटेल है, किसान ऑटो इंडस्ट्री। बेसिकली वी आर फ्रॉम इंजीनियरिंग सेक्टर, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाते थे। तो पहले हम मतलब ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जो रहता है उसका हमारा सप्लाई। बोलिए बोलिए। देन ये जो सिंगल फेस ये कपास का ये जो पिनने का जो मशीन होता है ना, ईयर बॉक्स वगैरह रहते तो हम बनाते थे। बाद में हमें पता